हाँ, शुरू कर दो यार आप। ठीक है सर, ओके सर, ओके। Good afternoon to all. Myself, Bharat Bhushan Agrawal, Senior Manager CNS at Baroda Airport. Firstly, I would like to thank to GM sir and their team at RSQ for successful organizing this type of modules and knowledge sharing sessions. Today, at I will discuss two topics. One is DGCA audit and observations regarding registration level. Second thing is I will the points which are mentioned here. Brief idea about these points. The first our objective of this module is complete procedures oblique process mentioned in the CNS circular for installation and translation of the CNS facilities. Means suppose any station, if any station any NAVET facility is installing at the first time or transinstalling or replacement is there, what are the processes it has to gone for the station level and at CHQ level also. So all the processes we will discuss in brief. Second, some of the important environmental requirements for safe operation of CNS oblique automation facilities. Brief discussion on power policy. Brief discussion on earthing, lighting and surge protection. Then remote connectivity. Now first we will cover the topic complete set of process involved for installation oblique translation of the any equipment. Generally, this topic basically covers two NAVETS equipment, NAVETS or radar, whichever installation is nearby the runway strip or outside the runway strip. First is lifespan. Suppose if any station already having the any equipment like DVO, ILS, because nowadays headquarter is procuring many stations as because the lifespan of the many equipments at station level has already expired or completed lifespan. So first, if any equipment we have one circular 10 oblique 2020 in which lifespan of every equipment is mentioned there. For NAVETS facilities like DVOR and ILS, the lifespan of these facilities is 12 years from date of the installation of commissioning, whichever is as per, as generally it is started from date of commissioning installation only, not from commissioning, because commissioning generally sometimes takes 6 months, sometimes it takes 1 year for depend on the uh, observations or processes involved in the headquarter side. So at station level, what we'll do first, if your equipment life already expired, means suppose any station has expired 12 years lifespan, then station has to start the approval from CNS O&M section for approval of lifespan. Uh, Suppose in Vadodara case, just I just tell to you in ILS we have our old हमारा जो पुराना पुराना आईएलएस था उसको 20 साल हो गया था। तो 12 साल के बाद हमको लगातार हर साल 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर हर लाइफ स्पेन हम बढ़ाते रहते थे जब तक कि कोई नया इंस्टॉलेशन और ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको स्टेशन लेवल पे करना है। इसके लिए फॉर्मेट्स होता है वो जो आप भर के आपको हेडक्वार्टर को देना है सीएनएस ओएनडीएम को थ्रू आरएसक्यू, देन ओएनडीएम विल गिव अप्रूवल अकॉर्डिंगली। Then second point is survey action along with technical inspection report. Suppose any equipment, if replacement is already approved, means any or in the purview of headquarter for replacement, then you have to start the technical inspection report. For what you have to do, you have to initiate a e-office file, and according to the material management manual, you have to calculate the price of that equipment according to the number of life years it has spent already. Uh, and the approval of TI report is done by the regional GM. So this process is not so much long. You have to just one format is there. You just write the process, actual price, then depreciation price. Then you have to get approval from the GM region. Is the second portion. Third is master planning for procurement. So
When TI report, it will go to the headquarter. Then CNS planning section will do the master planning. It is not for only one station. Wherever the equipment lifespan already expired, they will plan accordingly so that the mass procurement can be done at the same time. So this is the third stage. Fourth stage is site selection, simulation study and the site approval. इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट पे कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, लेकिन आपको अब सेम साइट पे तो लगा नहीं सकते इक्विपमेंट को लाइक डीवीआर और आईएलएस. सो यू हैव टू चूज ए डिफरेंट साइट फॉर इंस्टॉलेशन और ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो इसके लिए कमेटी बनती है जिसमें कमेटी मेंबर्स सीएचक्यू सीएनएस प्लानिंग से होते हैं, ओएनडीएम से होते हैं, आरसीडीए से होते हैं, और ये स्टेशन लेवल पे आते हैं, साइट्स 3-4 साइट सेलेक्ट करते हैं और उसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को देते हैं आगे. Then finally one site will be approved after simulation study. Simulation study means वो आपको पंकज सर ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि जब कोई भी इक्विपमेंट लगता है तो सिमुलेशन स्टडी होती है ताकि उसमें कोई इसको रेडिएशंस वाइज जो रेडिएशंस होते हैं इक्विपमेंट का वो किसी से इफेक्ट तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई तो इसको अवॉइड करने के लिए सिमुलेशन स्टडी की जाती है. देन फाइनली साइट इज सेलेक्टेड. उसके बाद क्या होता है कि आपके पास साइट अप्रूवल कॉपी आपके स्टेशन पे हेडक्वार्टर भेज देता है. उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस आपको करना क्या है फॉर डीवीआर और आईएलएस केस, यू हैव टू टेक द एनओसी. एनओसी के लिए एक नौकास का एक पोर्टल है, दैट इज ऑनलाइन पोर्टल. उसमें क्या होता है कोई भी जो भी ऑथराइज्ड एक लॉगिन बनाना पड़ता है नौकास के लिए. तो कोई भी इसके लिए ऑथराइज करने के लिए हेडक्वार्टर से जो नौकास डिपार्टमेंट देखता है उससे आप अपना लॉगिन आईडी ऑथराइज करवा लीजिए. उसके बाद उसमें कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर स्टार्ट ऑफ द एनओसी प्रोसेस. फर्स्ट इसमें जो डॉक्यूमेंट लगता है दैट इज साइट अप्रूवल, साइट एलिवेशन सर्टिफिकेट. तो साइट एलिवेशन सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आप उस जिस साइट पर आपका जो रिक्वायरमेंट लगना है, तो जो हेडक्वार्टर से जो साइट अप्रूवल कॉपी आती है उसमें एक अप्रोक्स डिस्टेंस, एक कोऑर्डिनेट्स मेंशन रहता है, और उसमें लेकिन हाइट मेंशन नहीं रहती कितनी हाइट में मिलेगा अप्रोक्स. तो उसके लिए एक साइट, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि आज अभी जैसे बड़ौदा के केस में सूरत में एक ऑथराइज एआई ऑथराइज सर्वेयर्स अवेलेबल हैं, ऐसी रीजन में कई जगह अवेलेबल होंगे, तो वहां से उन बंदों को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. और ये यदि प्रोसेस नहीं है तो नौकास की साइट पे कुछ ऑथराइज एआई ऑथराइज सर्वेयर्स भी हैं जिसको हम आरईडी की अप्रूवल से लेके फाइल इनिशिएट करके हम उनको डायरेक्टली बुला सकते हैं. उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स एनओसी साइट पर अपलोड करना है. तो ये फर्स्ट होता है कि आपको अप्लाई करना है. तो ये जनरली ऐसा केस देखा गया है कि इसमें एनओसी जब अप्लाई करते हैं तो इफ एनी स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन द रनवे स्ट्रिप, तो सॉफ्टवेयर जो होता है नौकास का वो बाय डिफॉल्ट 0 हाइट देता है. तो या तो ये है कि जो जैसे बड़ौदा के केस में अहमदाबाद का अथॉरिटी फॉर नौकास, तो या तो आप डायरेक्टली अहमदाबाद से पहले परसू कर लीजिए कि ये नेवेट फैसिलिटी है, तो वहां पे वो ऑफलाइन मोड में उसको कमेटी बना के फर्स्ट स्टेज में ही अप्रूवल दे देंगे. अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर रिजेक्टिंग और गेटिंग 0 हाइट, यू हैव टू रिव्यू द एप्लीकेशन अगेन. इफ रिव्यू करने के बाद देन जो जहां भी नौकास के जो भी ऑथराइज सेंटर्स हैं वहां पे वो सीएनएस का जो बंदा रहेगा, एटीसी का रहेगा, देन वो एक लोकल कमेटी बना के आपको डिसीजन दे सकते हैं उसके लिए. अब यदि सपोज आपको जो डिजायर्ड हाइट चाहिए लेकिन वो आपको डिजायर्ड हाइट नहीं मिली, लाइक मैं बड़ौदा का केस बताता हूँ हमारा वाला. हमारे यहाँ नए एटीसी का कंस्ट्रक्शन हुआ है. नए एटीसी कंस्ट्रक्शन में नए एटीसी टावर में जो हाइट अप्रूवल लिया था एनओसी का, दैट इज इनिशिएटेड बाय द सिविल सेक्शन इनिशियली. तो उसमें इन्होंने टॉप जो ले लिया था विदाउट कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द एंटीना, बीएचएफ एंटीना. तो नाउ इस केस के लिए भी एक प्रोसेस है आगे. सपोज आपको रिव्यू में भी आपको हाइट नहीं मिलती है तो देन यू हैव टू अपील. अपील के लिए क्या करेंगे, एक सर्कुलर है एडसेक सर्कुलर 06/2020, उसके अकॉर्डिंग आपको ई ऑफिस फाइल इनिशिएट करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू द हेडक्वार्टर. देन हेडक्वार्टर विल डू सिमुलेशन स्टडी. देन height by the PAN, offshore and whatever department involved in this process, they can give the approval for this particular cases. This is the fifth stage. Now after that, sixth, when you will get the NOC certificate, then this data will go to the CNS 1 section for WPC license process. Means and whatever we have the
NAVET sites, every equipment having any frequency, so that frequency has to be licensed. So that license will be taken from the WPC. That process will be done by the CNS O&M section. Then after that, the next step is safety assessment. The safety assessment is nowadays a very much crucial stage. People are doing it efficiently also nowadays. Initially stage it was not so much importance, or like people are doing just like that only. But nowadays the formats are formed properly, and people are doing properly also. So safety assessment, they are इसके तीन parts होते हैं: concept level, second is execution level, and third is commissioning level. So before executing any work, means any civil work, electrical work, any work related to the project, first you have to get approval of safety assessment, concept, design, and execution level. After getting approval of this particular document, you can start. Before approval, you cannot start the work. तो इसके लिए अब क्या हो गया, अब लेटेस्ट में नई गाइडलाइंस आई हैं कि जो टेक्निकल स्कार्स है वो सीएनएफ सेक्शन इनिशिएट करेगा, और जो सिविल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्कार्स है वो सिविल इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन इनिशिएट करेंगे। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि हमारे यहाँ दो डिपार्टमेंट है जिससे हमको अप्रूवल लेना होता है। पहला डिपार्टमेंट है एविएशन सेफ्टी, देन सेकंड इज डीजीसीए। सो फॉर द सीएनएस पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्निकल स्कार्स, we have to get approval from the aviation safety only. So aviation safety के लिए हमको standard formats है that we have to initiate the e-office file for particular facility, और e-office file के through आपको approval मिल जाता है। Now second case is DGC approval. DGC approval के लिए generally some station CNS का जो बंदा है वही initiate कर देता है सिविल इलेक्ट्रिकल स्कार्स, सब स्टेशन में सिविल इलेक्ट्रिकल वाले कर देते हैं, सब स्टेशन पे सेफ्टी मैनेजर will initiate the process. उसमें इनिशियली स्टेज में क्या था, पहले हम लोग ई ऑफिस फाइल इनिशिएट करके हम ईडी ऑपरेशन जो है वो एक रिव्यू लेटर इश्यू करते थे। रिव्यू करने के बाद फिर हमको वो जो अप्रूवल आने के बाद हमको डीजीसी की साइट पे जाके वो सारे जितने भी हजार्ड्स हैं, कंसिक्वेंस है, जितने भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करेंगे, देन यू विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम द डीजीसी। बट नाउडेज एपीडी इज ऑथराइज्ड टू गेट द रिव्यू लेटर, सो नीड नॉट टू सेंड द DGC with the SCARS related documents to headquarter. Your APD can authorize the letter or issue a review letter. By this letter, you can upload the documents on the DGC site. Then the RHQ level or CHQ level, whatever DGC is involved, they will give the approval for safety assessment. The next stage is generic law and AS law. This some processes will go in parallel also, not sequentially. This suppose you have station have headquarters has purchased the equipment. The station equipment has come to CRSD or at station level. Now you have the RCDU will provide the generic law or AS law. Generic law is common to all. It is not specific to any station. एंड स्पेसिफिक लोग में स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वर्क, इसमें स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वर्क में जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे उनको पता होगा उसमें क्या क्या काम मेंशन रहता है। इसमें सपोज कोई भी आपका इंस्टॉलेशन है तो उसमें एसलो की मदद से आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप बजट प्रिपरेशन करते हैं। तो बजट में आपको क्या क्या काम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, क्या क्या काम सिविल से रिलेटेड है, क्या क्या काम सीएनएस से रिलेटेड है, उसके लिए आपको कंसोलिडेट लिस्ट बनाना है। फिर आपको एक कंसोलिडेट बजट बनाना है, तो वो सारी चीजें मेंशन रहता है। साथ में जब आरसीडी टीम यहाँ पे आपके स्टेशन पे आती है तो उस समय क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट जो आरसीडी देता है वो भी आपको फुलफिलमेंट करना है। लाइक आपको सपोज आईएलएस के केस में आपको सामान शिफ्ट करना है एक साइड से दूसरी साइड पे, आपको क्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जेसीबी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर अर्थिंग पर्पस, एंड आपको टोटल स्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर सर्वे अदर पर्पस। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन द बजट. So the next point is budget preparation and ANDS and tender action. So whatever works mentioned in the AS law, station will prepare the consolidated budget. Means CNS will prepare the CNS related works, civil will prepare the civil related works, and electrical will prepare the electrical related works. All these works will be combined, and combined ANDS will be given by the
RHQ और CHQ, whichever is the authorized। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भरत जी, गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। अच्छा, ये जो 7th पॉइंट आपने बताया ना रिगार्डिंग सेफ्टी असेसमेंट, यस सर। the work is related with civilian and electricals, this is applicable only when the work is going on in operational area ना, नॉन ऑपरेशन एरिया यस में सर। सिविल इलेक्ट्रिकल का कोई जरूरी नहीं है इसका। नो सर, लाइक अवर सर, अपने बड़ौदा केस में जो नया ATC था वो ऑपरेशन लिया के बाहर था। और बिल्कुल बिल्कुल, तो उस केस में तो आपको DGC का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेने का कुछ भी। कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इवन उसका स्कार बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सिविल यस यस। इलेक्ट्रिकल। आपको जो स्कार्स बनाना है बस केवल वो जो आपकी जो नया सीनस फैसिलिटी इंस्टॉल होगी या राइट राइट, ट्रांसटॉल होगी उसके लिए वर्कर्स करना है आपको स्कार्स। करेक्ट करेक्ट, और दैट हैज टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम द एविएशन सेफ्टी ओनली, उसमें DGC का कोई रोल नहीं है उस पॉइंट पे। राइट राइट राइट। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। So after getting SCAR's approval from DGC or aviation safety, whichever is applicable to station, so the work will be started at station. Firstly, initially, it is well known the civil work will be done, civil work will be done, then electrical work will be done. But यहाँ पे आपको एक पॉइंट बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको सपोज आपकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है एज ए सीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको इस पॉइंट पे पावर पॉइंट चाहिए, आपको इस पॉइंट पे AC चाहिए, आपको इस पॉइंट पे वॉल पैनलिंग चाहिए, आपको इस पॉइंट पे कंड्यूट चाहिए, तो वो आप पहले से आप सिविल और इलेक्ट्रिकल के साथ परव्यू करें, ताकि बात जब काम हो जाए तो उसके बाद दिक्कत ना हो। तो इनिशियल लेवल पे यदि हमको परस्यू करेंगे तो ये चीजें दिक्कत नहीं होगा। तो इनिशियल लेवल पे आप इनको एक मीटिंग करके डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट टाइम एक्शन। सपोज नॉट टाइम इज कब रिक्वायरमेंट होता है, जैसे लाइक DVR में तो जनरली हम साइट सिलेक्शन करते हैं रनवे स्ट्रिप के बाहर। तो और जो नई साइट होगी वो अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर 100 मीटर जितना भी अप्लीकेबल है वो होगा। तो उस केस में वहां पर नॉट पुराने DVR की नॉट टाइम लेने की जरूरत नहीं है। बट इन द केस ऑफ ILS, इफ सफिशिएंट स्पेस इज नॉट अवेलेबल, और देन आपको जो साइट सिलेक्शन होगा, लोकलाइज्ड एंटीना का सिलेक्शन होगा या GP एंटीना का, वो या तो लोग एग्जिस्टिंग लोकलाइज्ड एंटीना के आगे होगा या पीछे होगा। तो उस केस में आपको नॉट टाइम एक्शन लेना है। तो ये नॉट टाइम एक्शन कब से इनिशिएट होगा, कब मतलब स्टार्ट होगा? सपोज फिजिकल इंस्टॉलेशन करने से पहले, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेशन लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स अवेलेबल रहेंगे, CNS, ATC, रिस्पेक्टिव एयरलाइंस, फ्लाइंग क्लब्स एंड वॉट एवर स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व। तो उसकी एक मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के आपको थ्रू E-ऑफिस फाइल के थ्रू आपको उसको हेडक्वार्टर भेजना है O&M सेक्शन में। देन उसके बाद DGC एक आपको उसमें डेट भी मेंशन करना है कि आपको नॉट टाइम कब से चाहिए अप्रोक्स और कब तक चाहिए, एक टेंटेटिव डेट। तो अकॉर्डिंगली हेडक्वार्टर इन कंसल्टेशन विद DGCA will initiate the G series not time. Like this, in Vadodara case, we have done this process, and we have taken the NOTAM from 15 September onwards. Our old ILS was not from NOTAM. So NOTAM process में क्या है, जब NOTAM ले लिया आपने तो आपका जो ओल्ड ऑपरेशनल ILS है उसको आपको ऑपरेशन से विड्रॉ कर लेंगे। साथ में डिसमेंटलिंग प्रोसेस जो भी प्रोसेस है उसको हटाने के लिए या तो आप खुद कर लीजिए या फिर RCTU कर लेगा। तो वो आपको प्रोसेस कर लेना है। Second, next point is physical installation along with optimization and commissioning flight calibration. अब ये आपका सारा काम हो गया। आपने आपके जो एसलो में जो काम मेंशन थे, सारे वर्क्स मेंशन थे, वो आपने स्टेशन लेवल पे कर लिया। लाइक प्लिंथ बनाना, लोकलाइजर का हट बनाना, केबलिंग, पावर सप्लाई, कंड्यूटिंग, GI पाइप लेइंग, मिसलेनियस वर्क्स। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप एक चेकलिस्ट होती है जो RCDU के आने से पहले हमको भर के देनी पड़ती है कि हमारे स्टेशन में ये काम हो गया है। और तो उनको इंटीमेशन देना पड़ता है कि यू कैन कम नाउ एट स्टेशन लेवल फॉर फिजिकल इंस्टॉलेशन। तो RCDU आपके स्टेशन पे आती है। RCDU को कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको गाड़ी अरेंज करना है, आपको ये मार्केट से कुछ आइटम वो लोग परचेज करते हैं इंस्टेंटली थ्रू इम्प्रेस्ड। सो उसके लिए आपको हेल्प करना है स्टेशन लेवल पे। आपको एक नोडल ऑफिसर मतलब प्रोजेक्ट
में जो भी है प्रोजेक्ट टीम में एक बंदा उनके साथ एसोसिएट होना हमेशा। और मतलब मुझे मिसलेनियस वर्क्स हैं वो कई सारी चीजें होती हैं। तो फिजिकल इंस्टॉलेशन है द फर्स्ट पार्ट। जब फिजिकल इंस्टॉलेशन जब हो जाता है, उसके बाद आरसीडीयू उसको ऑप्टिमाइजेशन करती है इक्विपमेंट को। ऑप्टिमाइजेशन मींस इक्विपमेंट को ऑन करके वो अपनी जो भी ग्राउंड लेवल पर सेटिंग्स हैं वो सारा अपनी सेटिंग वेटिंग करेगा। क्योंकि अगर ये इक्विपमेंट ऑलरेडी नॉट टाइम पे है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि नॉट टाइम पे नहीं है लाइक डीवीओआर, तो उस केस में नॉट टाइम लेना पड़ेगा फॉर द सेकंड डीवीओआर विच इज इन ऑपरेशन। So this is the optimization process. Now along with this process optimization, parallel में वो RCDU and station will coordinate to FIU for commissioning flight calibration of the particular equipment. So optimization and commissioning flight calibration will be done. Means all this three process after physical installation, optimization, commissioning, all these will be done by the RCDU and FIU in coordination with the station and headquarter. The next, after installation, if it is done, now the next step is coordinate verification and validation. इसके लिए एक सर्कुलर है, TIS सर्कुलर, उसके अकॉर्डिंग आपको जो डाटा है वो प्रिपेयर करके हेडक्वार्टर को भेजना होता है। तो उसके लिए एक सर्वे कराना पड़ता है। जब सर्वे मतलब बेसिकली आप करना क्या है कि ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट वेरिफिकेशन मींस जो भी अपना आपका एंटीना लगा है, हट लगा है, जो भी मॉनिटर एंटीना लगा है, उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स and elevation, ground elevation and top elevation, that has to be recorded, and these are the final coordinates, and it will be approved by the CHQ सर्विस सेक्शन। एंड जब सर्विस सेक्शन से आपके पास ये अप्रूवल आ जाता है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये फाइनली एआईपी में पब्लिश होते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको सर्वेयर को बुलाना है और आपको प्रिकॉशनरी सारा जो मेजरमेंट्स हैं जो भी है वो प्रॉपरली करना है, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स आपके हमेशा आगे फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड रहेगा। तो दिस इज द 13 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज सेफ्टी असेसमेंट। नाउ वीएनवी डाटा हमने प्रिपेयर कर लिया, वीएनवी डाटा को हमने हेडक्वार्टर भेज दिया। उसके बाद स्टेशन लेवल पे आपको सेफ्टी असेसमेंट करना है कमिश्निंग लेवल। कमिश्निंग लेवल के लिए वही सेम चीज, टेक्निकल स्कार्स होगा तो आपको एविएशन सेफ्टी से या फिर डीजीसी से विचेवर एप्लीकेबल। सिमिलरली सिविल इलेक्ट्रिकल के केस में वो डीजीसी से अप्रूवल लेना है इसका। तो जनरली क्या होता है कि आजकल कमिश्निंग लेवल में जनरली हम लोग नए हजार्ड्स बहुत कम फाइंड आउट करते हैं। हम जो हजार्ड्स है जनरली कंसेप्ट डिजाइन एक्टिवेशन लेवल में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जनरली हम इसमें जनरली बनाते हैं इसका रिकॉर्ड। जब नील बनाते हैं तो उसमें जो पुराने जो फॉर्म्स हैं लाइक आप सेफ्टी से जिसने भी किया होगा उसको पता होगा, इसमें फॉर्म्स होते हैं ऐसे 103, 105, 127, देन अंडरटेकिंग, देन दीज विल बी रिमेन सेम, द सेम डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी अपलोड। बट द न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके पास? आपके पास एफआईयू रिपोर्ट हो जाएगा, आपके पास वीएनडी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, आपके पास कार कंप्लायंस चेकलिस्ट हो जाएगा, फिर आपके पास सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्लीशन लेटर हो जाएगा, फोटोग्राफ्स हो जाएंगे इस पॉइंट के, फिर अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको लगा के आपको डीजीसी साइट पे या फिर एविएशन सेफ्टी के थ्रू अप्रूवल ले लेना है। तो ये अप्रूवल आता रहता है। इसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ पे सारा मतलब एक हेडक्वार्टर एक प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट भेजता है इंस्पेक्शन के लिए जो कि ओएनडीएम सेक्शन करता है। इसके लिए एक हेडक्वार्टर से सर आते हैं, जनरली विकास सर जनरली आते हैं, विकास सर भारद्वाज सर फॉर आईएलएस केस। तो वो आते हैं और नाउडे एक रीजन से एक बंदा नॉमिनेट कर लेते हैं, वो स्टेशन लेवल पे आते हैं। तो उसमें प्री कमीशन चेकलिस्ट में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं लाइक आपका एसओपीज है कि नहीं है, आपके सप्लाईज प्रॉपरली है कि नहीं है, आपके कंडक्ट्स प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब मैनी पॉइंट्स आर मेंशन दैट प्री कमीशन चेकलिस्ट। सो दैट हैज टू बी उसको पूरा फिल कंप्लाई हो जाता है तो आप उस हेडक्वार्टर में डिपेंड कीजिए कि हम प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट के लिए तैयार हैं। तो प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट जब हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट ये अपना इंटरनल डिपार्टमेंट है, ओएनएम डिपार्टमेंट का काम है, इसको कहीं और का कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है मीन्स अदर पर्पज से। इन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ही ये फ्लाइट प्रोसीजर और डिजाइन प्रोसीजर चलता रहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम बीएनवी कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, जो डाटा सीएचक्यू से अप्रूव हो जाता है, तो वीएनबी कोऑर्डिनेट डाटा को हेडक्वार्टर
उसको एएसएम डिपार्टमेंट को भेज देता है। वो एएसएम डिपार्टमेंट क्या करता है, वो फ्लाइट प्रोसीजर और डिजाइन प्रोसीजर का प्रोसेस इनिशिएट कर देता है। अब जब ये प्रोसीजर और सब इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद डीजीसी को पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो डीजीसी विल अप्रूव इट, एंड डीजीसी विल मेक एक just in case of ILS, next step is instrument flight procedures that has to be carried out by sometimes it is by FIU, sometimes it is by authorized airlines through DGCA। उसके लिए एक चार्ट होता है, जो प्रोसीजरल चार्ट होता है, उस चार्ट को फॉलो करता है जो भी फ्लाइट आता है उसको, एंड उसको रिपोर्ट को डीजीसीए को सबमिट करता है। फिर वो IFP रिपोर्ट का अप्रूवल हेडक्वार्टर डीजीसीए देता है, तो आपका मतलब प्रोसीजर अप्रोच कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद होता है AIP पब्लिकेशन। जब ये फ्लाइट प्रोसीजर्स हैं जो डीजीसी से अप्रूव हो जाता है, उसमें AIS सेक्शन इन कंसल्टेशन विद CNS O&M इनिशिएट NOTAM G सीरीज फॉर कमीशनिंग ऑफ द फैसिलिटी एज पर AX साइकिल 8 वीक। इस सर्कुलर में जनरली 8 वीक लिखा हुआ है, बट nowadays we are following it to the 45 days। Then लास्ट स्टेज द फाइनल कमीशनिंग। जब ये आपका AIP में पब्लिश हो जाता है आपका ये जो नोटम है, और 45 डेज के लिए हम वेट करने के बाद आप नेक्स्ट 46 डेज से आप यू कैन कमीशन द इक्विपमेंट, मींस यू कैन स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट। सो दीज आर द प्रोसेसेस involved from the starting to final commissioning of the any equipment। This is the this is for the new equipment या transportation case, the all the process have been finished now। The last stage is for the old operational equipment। What we have to do, the survey oblique auction action by station for old equipment। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेशन इंटीमेट टू CHQ, RHQ, SMUs, stations if any station require the dismantle part equipment antenna for serviceable parts only। तो हम स्टेशन क्या करता है, अब हेडक्वार्टर से अप्रूवल होने के बाद उन पार्ट्स को जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां भेजते हैं। जब सारा रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो जाता है, अब किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन स्टेशन विल डू द सर्वे, फाइनली सर्वे पार्ट मींस ऑक्शनिंग विल डू। if any station SMA don't not require further parts due aging, then station will do survey of the equipment and start auctioning of the equipment through MSTC process। this is the last process for this everything। so इसमें किसी को क्वेरी है, किसी सबको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? समझ में आया ये वाली पॉइंट सारे सबको किसी को? बिल्कुल बिल्कुल भारद्वाज जी, महाराज जी। हाँ सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। तो ये जनरली ये अभी जैसे इतने सारे इंस्टॉलेशन चल रहे हैं नए वाले, तो उनके लिए हेल्पफुल है जिनके यहाँ पे नया इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो उसके पर्पज से ये बेस्ट है। तो ये प्रोसेस है सारे वो स्टेशन लेवल पे करना होता है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्कुलर्स हैं, सब सारी चीजें मेंशन्ड है प्रॉपर्ली। नाउ द आई फॉर द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सम ब्रीफ आइडिया अबाउट some of the important environment requirement for safe operation of the DME। First is room temperature and humidity। This room temperature and humidity, what we are doing nowadays, we are installing the humidity sensor, temperature and humidity sensor we are installing at every places, through which we are monitoring the temperature। So temperature should be maintained as per the approved maintenance rule or the OEM recommendation। The second is power supply policy, then we will discuss later। Battery backup minimum 30 minutes or as per the requirement or as per the CNS manual volume 5 version 3। Earthing and lightning protection, this is as per CNS manual। Then media for remote operation, this is also documented। Management of a spare module, this is also documented। We have to follow the circulars and we will get the things। Availability of equipment manual, DGCA car, ICAO docs and CNS circulars। Now I just briefly टेल अबाउट द सीनस पावर पॉलिसी। जो लेटेस्ट पावर पॉलिसी है वो सीनस सर्कुलर 2002-2023 में मेंशन्ड है। इसके अकॉर्डिंग जो नैवेट साइट्स के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूं मैं, इनपुट सप्लाई फॉर द यूपीएस एट द साइट शुड बी इन रिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रॉम एटलीस्ट 2 एसेंशियल फीडर लाइंस, एंड both feeder lines supply should terminate in auto changeover switch। जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है मींस इनपुट सप्लाई मींस ऑफ रॉ सप्लाई, रॉ सप्लाई मींस 3 फेज सप्लाई दैट इज इलेक्ट्रिकली इज प्रोवाइडिंग।
So that supply should come in ring configuration and through different path, and it should terminate to the auto changeover switch. Then output of the auto changeover switch and third supply will terminate in LT panel. जनरली जैसे बड़ोदरा केस में दो सप्लाई तो ऑटो चेंजेबल में आ रहा है, थर्ड सप्लाई पैरामीटर से हमने एडिशनल ले लिया है, दोनों सप्लाई का इनपुट जो है वो एलटी पैनल में टर्मिनेट हो जाता है. देन एलटी पैनल से ये सप्लाई, देन थर्ड सप्लाई विल गो टू द अगेन ऑटो चेंजेओवर स्विच. The third point I mentioned है main supply and the standby supply from LT panel will terminate in auto changeover device, and output of the auto changeover means three phase. This is three phase only. Will be input of the modular UPS through respective DVs or MCVs defined of the defined current rating, which is mentioned in the S law. Then raw supply mentioned in the point 3 is to be passed through class V oblique type 2 power surge protector before input to the modular UPS. Then fifth, output of the modular UPS should be terminated in the DV box routed through class C oblique type 3 surge protector. Basically it is series filter, means it should be in the series between the UPS and the equipment or DV part. And it is mentioned that the distance of the surge protector and the equipment should not be more than 10 meter away from the load. यदि आपका यूपीएस है और एक क्लास सर्ज प्रोटेक्टर लगा रखा है और आपका इक्विपमेंट है, तो वो 10 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. यदि ज्यादा है तो आप कोई सीरीज में क्लास सी और लगाते जाओ. सपोज आपका 50 मीटर का है तो आप 2 या 3 सीरीज फिल्टर लगा सकते हैं एडिशनली. Then further distribution to respective extension board as per SLO or as per our requirement. Then next point is battery associated with the UPS should be replaced as per lifespan or oblique every 2 year or as per the OEM recommendation. Nowadays, batteries are coming, lithium ion battery is coming that provide the warranty of 3 years, 5 years also they are providing. So at the initial level, you can decide the battery cost, means battery warranty during procurement. About इसको आपको क्या करना है कि आप सपोज आप बैटरी की लाइफ 2 ईयर वारंटी लेके कंसिडर कीजिए, 3 ईयर लीजिए, 5 ईयर लीजिए. फिर आप तीनों प्राइस को कंपेयर कीजिए, यदि बहुत डिफरेंस नहीं है तो आप बैटरी की लाइफ को ज्यादा बढ़ा सकते हैं. Then logs and parameter of UPS should be monitored through remote at equipment room. आप जो आजकल हम जो यूपीएस ले रहे हैं, इट शुड हैव द लॉगिंग फैसिलिटी, मींस कब आपने लॉगिंग किया, कब लॉग आउट किया, कब आपकी सप्लाई ट्रिप हुई, कब आउटपुट ट्रिप हुआ, वो सारा इट शुड बी लॉग्ड. देन यूपीएस एंड बैटरी शुड बी कैप्ट इन सेपरेट रूम. यूपीएस और जो बैटरी है उसको में एक पार्टीशन होना चाहिए दोनों के बीच में, ताकि एक मेजर डैमेज ना हो. Then purchasing entity of the UPS should purchase the UPS keeping in mind warranty oblique CMC of the whole period of the UPS, because UPS की लाइफ स्पेन सीरीज सर्कुलर 10/2020 में मेंशन्ड है. उसमें सपोज UPS 5 kVA से कम है, देन उसकी लाइफ है वो 6 ईयर मेंशन्ड है. देन मोर देन 5 kVA मींस 6 to 20 kVA, द लाइफ ऑफ UPS इज 8 years. तो आपको सपोज 8 इयर्स की लाइफ है तो आप 5 ईयर वारंटी ले लीजिए और 3 ईयर सीएमसी ले लीजिए, या फिर 3 ईयर वारंटी ले लीजिए और 5 ईयर सीएमसी ले लीजिए. आप दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन मांग लीजिए. जो भी प्राइस अगर बहुत डिफरेंस ना हो तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज डेडिकेटेड अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूपीएस पैरामीटर आल्सो टू बी रिकॉर्डेड. This is the CNS power policy as a brief. Now the earthing, lighting and surge protection. As per CNS manual of the circular, NAVAD sites should have conventional, means CNS equipments also, ATC building site also, it should have conventional lighting system and earthing system and surge protection system. अब इसके जो कन्वेंशनल अर्थिंग होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. उसमें वन पार्ट होता है लाइटिंग, एयर टर्मिनेशन, बढ़िया साहब, एकदम बढ़िया. सर किसी को कुछ क्वेरी सर? सर किसी को कुछ क्वेरी सर?
Now we go further. Lighting air termination. I like VLA, vertical lighting arrestor, HLA, horizontal lighting arrestor. सर हाँ बताइए हाँ नमस्कार सर, स्नेहलता फ्रॉम गोंडिया। सर एक क्वेरी था बताइए। ये, अब बैटरी हम्म। का हम सिर्फ लाइफ स्पैन देखते हैं और जो हमारा वारंटी दिया होता है ओईएम ने बस वो देखते हैं, या हम उसका बैकअप भी देखते हैं कि सर अगर बैकअप वोल्टेज जो है वो हमारा प्रॉपर है, नहीं ड्रॉप हो रहा है, या हमारा 30 मिनट से ज्यादा बैकअप हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो भी हमें बैटरी शुड रिप्लेस ना? हाँ मतलब आपका बैटरी सही है, हाँ। परफेक्ट है, लेकिन आपको आपको वारंटी पीरियड या उसकी लाइफ स्पैन पीरियड को उसको कंसीडर करना है। आपकी यदि बैटरी सही भी अच्छा। चल रहा है तो आपको हाँ। एज पर सीएनएस सर्कुलर मैनुअल आपको 2 इयर्स में यदि है तो 2 इयर्स में चेंज करना है। 2 इयर्स की वारंटी है, ये 3 इयर्स की वारंटी है तो 3 इयर्स में चेंज करना है। तो जो भी इसका अच्छा वारंटी मतलब पीरियड है या फिर 2 इयर्स ठीक, एज रिकमेंडेड। ओके, हमें बैटरी की कंडीशन से डिपेंड नहीं करता है ना? नहीं नहीं, यदि आपकी ठीक है बैटरी सर। कंडीशन परफेक्टली भी है लेकिन आपको चेंज करना ही है एज पर सर्कुलर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। Now, third point is there should be no loose connection in lighting protection. Down conductor. Down conductor is what means copper strip only to earth pit that might result in high resistance connections. No part of the LPS has been weakened by corrosion or vibration oblique lighting strikes. Means जब भी कोई lighting strikes होती है या कुछ भी होता है, आपको time to time corrosion, vibration, lighting strikes, कोई copper strip में कोई दिक्कत तो नहीं है, corrosion है तो उसको timely action लेना है आपको उसके लिए। All conductors and system components are fastened securely to their mounting surfaces and are protected against accidental mechanical displacement. ये सब पॉइंट मेंशन्ड है, आई जस्ट मैंने जो कुछ मेजर पॉइंट्स उसकी जस्ट उसी को ब्रीफ कर रहा हूँ। फोर कनेक्शन मींस जब वो जो हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग स्ट्रिप में हम जो होल करते हैं, होल करने के बाद हम अर्थिंग स्ट्रिप ज्वाइंट करते हैं वहां पे, अर्थिंग स्ट्रिप या अर्थिंग कॉपर वायर, वो उसके लिए जो बोल्ट यूज करते हैं दैट शुड बी मेड ऑफ ब्रास। तो ब्रास को यूज करना है हमको। Then there's only one common grounding network for whole CNS facility. Nowadays, whatever earthing we are doing at site, it should be in the ring configuration. और उसके रिंग कैसे बनाना है आपको, उसके लिए आपको जितनी भी अर्थिंग्स हैं सबको एक जंक्शन पॉइंट पे लाके ज्वाइंट करना है। जब भी आपको इंडिविजुअल अर्थिंग मेजर करना है तो जंक्शन पॉइंट से उसको खोलिए और अर्थिंग मेजर कर लीजिए। इसका फायदा क्या है रिंग कन्फिगरेशन का, क्योंकि ये सारे पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में आपने सबने पढ़ा ही है कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो अपना अल्टीमेटली एम जो है कि जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है इट शुड बी लेस देन 5 ओम। The COM cables used for data communication is connected to the grounding network only at one end. Which nowadays we are also purchasing the this light surge protector for LAN cable also. So LAN cable also should be protected through surge protector. RF cables entering the shelter should have inline surge arresters, means जो RF cables हैं वो should have the RF surge protectors. The cable routing of various voltage circuit is separate for the RF, AC and DC. Means जो अपनी जो केबल रूटिंग है for AC से AC सप्लाई, RF सप्लाई एंड DC हाँ नहीं नहीं अच्छा रहा, मैंने कहा फिर भी बोल दूं, अब यहाँ तो भीड़ थी इंटरफेरेंस ना हो। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि थोड़ा पता फास्ट चला ट्रैक हम तो आगे आगे आ गए, सर्च अच्छा प्रोटेक्शन एंड ये इनपुट आप एंड आउटपुट का पैसेंजर हो यूपीएस, गए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्च प्रोटेक्शन होना चाहिए यूपीएस के इनपुट एंड आउटपुट में। अर्थिंग शुड बी ब्रेस्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड, और जहां भी हम रिक्वायर्ड है अर्थिंग, जहां भी अगर कोई कट लग गया है या टूट गया है तो उस पॉइंट को अर्थिंग कॉपर स्ट्रिप को आपको ब्रेज कराना है। देयर शुड बी जंक्शन बॉक्स वेयर ऑल अर्थिंग शुड बी कनेक्टेड एट वन पॉइंट टू मेक इट इक्विपोटेंशियल। अर्थ रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन 5 ohm. Earth to neutral voltage should be less than 3 volt. Physical check of earthing should be on the monthly, quarterly, half-yearly basis as per the attachment 1 to the circular 3 of the 2022, and same is to be recorded. SMU recommendation, nowadays some SMU recommendations also coming that has to be also followed. Like in DVR site, there should be 4 lighting arresters between the carrier antenna and the SSU antenna at particular equal radial. 4 extra protection, 3 extra lighting arrestor has to be installed in 120° at outside of the counterpart as per SLO received at the station. मतलब आपको अल्टीमेटली जितने भी एंटीनाज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है लाइटिंग रजिस्टर से, और दे शुड बी इंस्टॉल्ड इन ए प्रोविजन लाइक दैट, प्रॉपर प्रोटेक्शन शुड बी देयर। नाउ रिमोट कनेक्टिविटी कैसे करना है आपको,
रिमोट कनेक्टिविटी के लिए हमारा सर्कुलर है 3 ऑफ 2020 का, उसमें आपके पास रिडंडेंट मीडिया होना चाहिए। सो नाउ इनिशियली हम नेवेट साइट्स को इक्विपमेंट रूम से कनेक्ट करने के लिए हम आरसी मीडिया यूज करते थे, बट आरसी मीडिया शुड बी अवॉइडेड बिकॉज आरसी लाइन इज अफेक्टेड थ्रू द सर्ज एंड द लाइटिंग। सो उसके थ्रू आपके सर्ज और लाइटिंग आ सकती है, इसलिए उसको अवॉइड करना है। सो हमको OFC या RF लिंक ही प्रेफर करना है। तो OFC जो होना चाहिए फॉर नेवेट साइट, इट शुड बी इन द रिंग कॉन्फ़िगरेशन using armored OFC cable through SDP pipes. I mean, it should be proper laying in the vicinity of the ground. It means around 1 meter or 1.5 meter, depend on the station to station. So on that should be properly marked every 100 meter or 200 meter. It means that OFC cable is going by this way. Then second is RF microwave link or WiMAX as a secondary media. In case of non-feasibility of OFC link as a primary media, RF microwave can be used as a primary. सपोज किसी जगह पे OFC मीडिया का प्रोविजन रिंग में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप RF लिंक को एज ए प्राइमरी मीडिया यूज कर सकते हैं। नेटवर्क टर्मिनेशन यूनिट्स लाइक रूटर्स, स्विचेस, कन्वर्टर्स शुड बी प्रोविजन एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। Secondary media service provider should be different from the primary media service provider with no infrastructure sharing between the two service providers. Means आपका OFC कनेक्शन वो टोटली RF लिंक से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो इक्विपमेंट रूम में जब टर्मिनेट करते हैं OFC को रिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो कभी कभी हम जो RF लिंक जो आ रहा है अपना RF लिंक के थ्रू जो डाटा आ रहा है उसको भी हम OFC उसमें डाल देते हैं। तो बेटर है उसको हम एक एज ए प्रोविजन रखें लैन केबल निकाल के जब भी रिक्वायरमेंट पड़े, क्योंकि OFC रिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा तो रियली चांसेस हैं कि आपका डाटा लॉस्ट हो, क्योंकि यदि एक तरफ से कटेगा तो दूसरी तरफ से अवेलेबल है। तो उस केस में जनरली हम प्रोविजन करके रख लेते हैं केबल का कि उस केबल को लगाने के RF लिंक आपका थ्रू हो जाएगा। RC line is to be avoided because RC line is affected by the lighting and can get damage the equipment. Atypical installation of the brother. So ये तो एक मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया। Now my second point is DGCA audits and findings। आपके स्टेशंस पे थोड़ा 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको ब्रीफ करूंगा मैं। किसी को पहले वाले टॉपिक्स में कोई क्वेरीज हो तो बताना एक बार। सर किसी को कुछ क्वेरी है पुराने पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी उसमें? नहीं भरत जी, नाइसली टेकन। थैंक यू सर। Now the second topic is DGCA audit and findings. हेडक्वार्टर ने एक सीनियर सर्कुलर 07/2020 इसके लिए निकाल रखा है। तो उसमें एक कॉमन अवॉइडेबल फाइंडिंग्स के बारे में मेंशन्ड है, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड है कि किस किस के लिए क्या क्या ऑडिट्स होते हैं उसके बारे में मेंशन्ड है। सो फर्स्टली मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ उसमें कि हम लोग ये ऑडिट्स करते क्यों हैं। ये जो हेडक्वार्टर ऑडिट करता है, एविएशन सेफ्टी ऑडिट करता है या DGCA ऑडिट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं। तो इसमें मेंशन्ड है to meet obligations to promote safe, orderly and efficient operation of civil aviation activities. DGCA has made some
standard and recommended practices as per ICAO annexures. So, as per Aircraft Act 1934 and its subsequent amendments, Section 4A, Safety Oversight Function, DGCA or any officer especially empowered in this behalf shall perform the safety oversight functions in respect of matters specified in this act or the rules made there under. So कोई भी ऑफिसर है जो डीजीसीए के द्वारा, डीजीसीए खुद या उसके द्वारा नॉमिनेट ऑफिसर दिस ओवरसाइट ऑडिट्स को कैरी कर सकते हैं. DGCA has developed a system of surveillance to ensure continuing organizational as well as individual professional competency of license, rating, certificate, approval holders. उसके लिए एक surveillance होता है, like an ATC. Now every ATC is having the license. So उनका एक अलग से WTTDL का एक surveillance होता है, that is done by DGCA. So DGCA car section 9 airspace and air traffic management series D part 1. इसमें mentioned है requirement of maintenance / inspection of CNS / ATM automation / surveillance facility checks at airports for safe operation of the aircraft. तो इस सर्कुलर जो कार है पर्टिकुलरली, इसमें आपको इस टॉपिक सर्विलेंस क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या चेकलिस्ट हैं, उसको मेंशन्ड है. So as per the above car in para 6 of this above mentioned point, any officer designated or nominated by the DGCA can be empowered to inspect at any time any facility to check the serviceability and maintenance records and procedures. DGCA जो ऑडिट होता है वो इन 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. सर्विलेंस एक्टिविटीज, that is the planned inspection. Regulatory audit, that is also a planned audit. Spot check, that is unplanned inspection. Inspection carried out under direction of the DG Director General. Means any incident or anything happens or some unplanned activities, that also a part of the audit. Objective and purpose of the circular. Now the serious circular, what is the purpose of the circular? The objective of the circular is to lay down an internal standard operating procedure to be followed by the all concerned within CNS department so as to have uniform guidelines / response for various inspection / safety oversight audit of CNS / ATM automation facility by DGCA or aviation safety at field station with purpose for action to be taken by all concerned in respect of preparing inspection in advance to avoid common routine observations during inspection. Suppose किसी स्टेशन पे ऑलरेडी ऑडिट्स हो चुके हैं और वहां DGCA या aviation safety ने कुछ पॉइंट्स दिए अपने, तो वो पॉइंट्स दोबारा रिपीट ना हो, तो स्टेशन उसमें सर्कुलर में मेंशन्ड है वो पॉइंट्स, ताकि स्टेशन ऑलरेडी एडवांस में अपनी तैयारी करके रखिए. पोस्ट इंस्पेक्शन प्रोसीजर टू बी फॉलोड. जब ऑडिट हो जाता है उसके बाद ऑडिट की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है. देन सबमिटिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट और करेक्टिव एक्शन प्लान ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंस्पेक्शन. नाउ सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट ऑफ CNS facilities. Safety oversight of CNS facilities is normally carried out by DGCA as per the annual surveillance and audit plan. इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक एयरपोर्ट्स पे ऑडिट्स होते हैं वो कौन कौन से ऑडिट्स होते हैं जनरली. फर्स्ट इज इंस्पेक्शन फॉर ऑपरेशनल CNS facilities. So these will be done by DGCA for individual facilities, means like CNS, the CNS or the person who is authorizing on behalf of CNS from the DGCA, he will inspect the CNS facilities in whole completely. Similarly for ATM facility, ATM department will do. Then second is inspection for this first point, this surveillance generally happens once in every 2 years.
तो जनरली एवरी 2 ईयर में ये इंस्पेक्शन होता है। द सेकेंड इज इंस्पेक्शन फॉर एरोड्रोम लाइसेंसिंग। तो एरोड्रोम लाइसेंसिंग जो होता है इंस्पेक्शन, वो एवरी ईयर होता है, और इसको डिपार्टमेंट बाय डीजी से, जो मैं एटीएम जो ऑथराइज्ड है एटीएम, उसके लिए और ये ऑडिट करते हैं। देन थर्ड इज फॉर ऑथराइजिंग कैट 2 कैट 3 ऑपरेशन एट एयरपोर्ट्स। इसके लिए ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, एटीएम, सीएनएस सेक्शन जो डीजीसी ऑथराइज करता है, वो लोग इसके लिए ऑथराइज्ड हैं। जनरली ये छोटे स्टेशन पर नहीं होता, जनरली जहाँ कैट 2 कैट 3 ऑपरेशन होता है वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, और ये जनरली वन टाइम ही होता है, रेगुलर फ्रिक्वेंटली नहीं होता। देन स्पेशल इंस्पेक्शन ऑब्लिक सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट फॉर एनी इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पर्पज। सपोज इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई उसके लिए अलग से स्पेशल केस में ये ऑडिट होता है। Following definition will be used in conjunction with the SOP. First is corrective action taken report. Action taken to eliminate the cause of a detected non-conformity or non-compliance or other undesirable situation as mentioned in the DGC audit observation. इसमें नोट में लिखा हुआ है corrective action doesn't mean the action taken to restore a non-conforming situation to a conforming situation. जनरली क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमने ऑडिट हुआ, हमने जो सपोज कोई जगह सपोज आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो आपने पर्टिकुलर उस एरिया में डीजी साइड कुछ वाटर पंपिंग करके उस पानी को बाहर निकाल दिया, तो ये एक मोमेंट्री सॉल्यूशन हुआ। दिस इज रेमेडियल एक्शन, दिस इज नॉट द परमानेंट एक्शन। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके रूट कॉज में जाना है कि वहां पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है, तो उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन, वो जो है वो एक्शन लेना है आपको। सेकेंड इज करेक्टिव एक्शन टेकन प्लान। Action plan submitted to DGCA by an audited public inspected station, detailing the proposed action by the station to resolve identified audit observations. Means जो भी audit होता है अपने यहाँ पे स्टेशन पे, तो DGCA या एविएशन सेफ्टी उसकी एक रिपोर्ट देता है स्टेशन को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस रिपोर्ट देना होता है उसका, कि सपोज कुछ पॉइंट या तो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स के लिए पीडीसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, समटाइम्स 15 डेज, समटाइम्स 20 डेज। उसका जो है मैं बताऊंगा उसका कितने कितने टाइम्स के लिए डिफाइंड है। अब इसमें जो अपने सीएचक्यू लेवल पे, सीएचक्यू में सीएनएस साइड से कौन से डिपार्टमेंट्स का क्या काम है वो स्लाइड्स में मेंशन्ड है। मैटर रिलेटेड टू इंस्पेक्शन फॉर ऑपरेशनल फैसिलिटी, ये सीएनएस ओएनडीएम डायरेक्टरेट इसमें इन्वॉल्व रहता है। मैटर रिलेटेड टू इंस्पेक्शन फॉर न्यूली इंस्टॉल्ड और ट्रांसफर फैसिलिटी, इट शुड बी हैंडल्ड बाय द सीएनएस प्लानिंग डायरेक्टरेट। मैटर रिलेटेड टू एरोड्रोम लाइसेंसिंग, ये सीएनएस ओएनडीएम डायरेक्टरेट इन्वॉल्व है इसमें। मैटर रिलेटेड टू इंस्पेक्शन न्यू एयरपोर्ट, न्यू इंस्टॉल फैसिलिटीज और ऑथराइजिंग कैट 2 कैट 3 ऑपरेशन, इसमें सीएनएस प्लानिंग डायरेक्टरेट इन्वॉल्व है। सीएनएस प्लानिंग डायरेक्टरेट एंड सीएनएस ओएनडीएम डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर में भी आपस में मीटिंग करते हैं फॉर कॉमन कॉजेज, इश्यूज और ऑब्जर्वेशंस। Following action will be initiated by the concerned RHQ station. Intimation regarding inspection, safety oversight of operational facilities. Station shall initiate action 2 months before for internal performance monitoring of the facilities as per the checklist circulated by the nominated officers from the station RHQ CNS depending on the facility installed. तो जब भी ऑडिट होता है वो प्री प्लान्ड होता है, तो आपको पहले से इंटीमेशन मिल जाता है उसका, तो आप 2 मंथ्स बिफोर आप उसकी इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आप जो भी आपकी फैसिलिटीज है उसको मॉनिटर कीजिए, जितने भी एक्शंस लेने हैं आपको, कोई लॉग बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर आप तुरंत एक्शन लीजिए ताकि ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स है वो कम से कम आ सके। तो डीजीसी क्या करता है, एविएशन सेफ्टी आपको एक चेकलिस्ट देता है, उस चेकलिस्ट को आपको भरना है और कंप्लायंस करना है। साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं लाइक स्टेशन सीएनएस मैनुअल, फ्लाइट कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स, टेस्ट इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिपोर्ट, ये हमको
वेल इन एडवांस हमको हेडक्वार्टर को भेजना पड़ता है, हेडक्वार्टर में O&M डिपार्टमेंट को। अब जो ऑडिट होती है उसमें दो तरह की फाइंडिंग्स होती हैं, लेवल 1 फाइंडिंग और लेवल 2 फाइंडिंग्स। लेवल 1 फाइंडिंग्स में क्या होता है, एनी सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट which lowers the safety standard and hazards seriously the flight safety। मीन्स लेवल 1 फाइंडिंग जो होती है उसको हमको इमीडिएटली रिजॉल्व करना है, उसके लिए जो टाइम डिफाइंड है वो विद इन 7 डेज में हमको उसको रिजॉल्व करना ही है। लेवल 1 फाइंडिंग ऑब्जर्व बाय द इंस्पेक्टर during the inspection will be informed to the service provider after discussing with the ANSS। मीन्स बेसिकली पर्पज यही है कि जो लेवल 1 फाइंडिंग्स है, जो आपको लगता है कि ये इससे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हैम्पर हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो उसको इमीडिएटली आपको रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए टाइम डिफाइंड है 7 डेज का। नाउ लेवल 2 फाइंडिंग्स में क्या होता है, एनी नॉन कंप्लायंस विद द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट which could lower the सेफ्टी स्टैंडर्ड। मीन्स ये वाला जो होता है ये इतना हजार्डस नहीं होता कि तुरंत हमको एक्शन एक्ट अपॉन करना है। इसके लिए तीन टर्म्स होती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो 60 डेज में आपको उस पर एक्शन लेना है। मीडियम टर्म में जो होती है कोई ऑब्जर्वेशन, उसको आपको 90 डेज में एक्शन लेना है। और लॉन्ग टर्म जो एक्शन होती है वो आपको 180 डेज में एक्शन लेना है। समटाइम्स कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको स्टेशन लेवल पे आप कुछ नहीं कर पाते हैं, लाइक इन बड़ोदरा और एफडी स्टेशन। सपोज आपका हट है, लोकलाइजर हट है, वो फ्रेंजिबल नहीं है, तो जब तक आपका नया कोई इंस्टॉलेशन नहीं होगा या नया हट नहीं बनेगा तब तक आप उस फाइंडिंग को हटा नहीं सकते। तो जो फाइंडिंग्स है वो लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है एंड इट इज वेल नोन। तो दिस इज लॉन्ग टर्म। देन एक्शन टेकन रिपोर्ट इज एग्जामिन्ड and issues that are mitigated, जो भी issues हैं that are mitigated are removed from the pending issues। After submitting initial ATR and cap, updated status on pending findings is required to be submitted till compliance is achieved against all the findings। तो आपने सपोज कोई पीडीसी दिया, इनिशियली 15 डेज का दिया, तो जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि हर स्टेशन एक अपना एक आरएसक्यू को डीजीसी रिपोर्ट भेजता है, डीजीसी ऑब्लिक एविडेंस सेफ्टी और ऑडिट रिपोर्ट्स की इसकी ऑब्जर्वेशन भेजते हैं। तो सब आप लोग उसको मंथली बेसिस पर जाता है, तो उसमें हम लोग जनरली एवरी 5th ऑफ मंथ, उससे पहले हम डाटा को हेडक्वार्टर आरएसक्यू भेज देते हैं। आरएसक्यू उस डाटा को रीड आउट करता है, उसके बाद उसको सीएचक्यू फॉरवर्ड करता है। देन सीएचक्यू उसको बिफोर 15th ऑफ एवरी मंथ उसको डीजीसीए या फिर पर्टिकुलर डायरेक्टर जहां भी इसको भेजना है उसको भेजता है। तो ये स्लाइड्स में यही मेंशन है कि इसमें हमको विद इन टाइम फ्रेम में जो भी है रिपोर्ट्स पे एक्शन लेना है और उसको आपको टाइमली रिपोर्ट्स आरएचक्यू को सीएचक्यू के माध्यम से आपको डीजीसीए को रिपोर्ट भेजना है कि आपने अपने स्टेशन पे क्या एक्शन लिया। After receipt of findings / observation at station, compliance / corrective action plan shall be submitted to CHQ within 30 days। जनरली क्या होता है कि कोई डीजीसीए की जब ऑडिट होता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो डीजीसीए को फर्स्ट जो हम एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है फर्स्ट जो होती है वो विद इन 45 डेज में हमको डीजीसीए को देना होता है। तो डीजीसीए के लिए लिमिट वो 45 डेज लिमिट सेट है, बट हेडक्वार्टर हमको वो रिपोर्ट 30 डेज में ही मांग लेता है। Then headquarter will further submit this data to DGCA। In case of proposed corrective / action taken plan, it should be submitted with PDC। Internal communication within the ये एक important point है, internal communication within other department of AI is not to be reflected as ATR or part of ATR / corrective। हमारा जो भी हम लोग एक्शन टेकन प्लान दे रहे हैं ये सब हमारा इंटरनल सीएनएस का विंग का ही पार्ट है। इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड टू अदर विंग्स। रिक्वायर्ड प्रूफ, आपका सपोज आपका कोई ऑडिट आया, आपने उसको कंप्लाई कर लिया, आपने एक्ट अपॉन कर लिया, तो आपको उसके बिहाफ पे प्रूफ अटैचमेंट करके उसके रिपोर्ट्स में लगाना है। Before forwarding the compliance report to CHQ, it should be reviewed by the RHQ। RHQ is also required to review ATR plan at their end for all such observations
for which action is required to be taken by the station oblique RHQ and forward a consolidated compliance report oblique action taken plan to CHQ. तो मैंने बताया पहले कि स्टेशन पर फर्स्ट उसको RHQ को भेजेगा, देन RHQ CHQ को भेजेगा, देन CHQ DGCA को भेजेगा. तो ये प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज पर्टिकुलर डेज का क्लॉजेस है, उसके अकॉर्डिंग डाटा आपको भेजना है. In some cases, stations may not able to do complete the some specific measurements. या सपोज किसी स्टेशन पे आप मेंटेनेंस रूल्स नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फॉल्टी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट्स और रिक्वायर्ड टूल्स, तो उस केस में आपको क्या करना है, सेम आप नियर बाई स्टेशन से बोरो कर सकते हैं उस चीज के लिए, या आप खुद एक अपना एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं उसके लिए, ताकि जल्दी जल्दी वो मेंटेनेंस रूल्स कंप्लीट आप फिल अप कर सकें. आफ्टर सबमिटिंग इनिशियल, ये मैंने बता ही दिया था 15th ऑफ एवरी मंथ को हेडक्वार्टर जो CHQ है वो DGC को डाटा भेजता है. नाउ दिस स्लाइड इज कंप्लीटेड. अब हेडक्वार्टर ने हमको ये ऑडिट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो कम से कम हो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्कुलेट कर रखे हैं सारे स्टेशंस को, लाइक कॉर्पोरेट सीएनएस मैनुअल in 9 volumes for different respective facilities of maintenance rules. फिर आपको स्टेशन सीएनएस मैनुअल कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉपी आती है स्टार्टिंग में, आपको स्टेशन सीएनएस मैनुअल बनाना है और उसको अपडेट करना है एवरी ईयर वाइज. अप्रूव्ड सीएनएस मैनुअल के लिए भी आपको हेडक्वार्टर डाटा देता है. फिर एसओपीज, कुछ स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उसके लिए भी हेडक्वार्टर आपको गाइड करता है. पावर सप्लाई पॉलिसी, टेस्ट इक्विपमेंट की एलिवेशन, लाइटिंग सब, उसके लिए भी आपके पास सीएनएस मैनुअल्स अवेलेबल हैं. और सब डाटा ये सब आपकी सारी साइट्स पे अवेलेबल है, मींस ये पर्टिकुलर साइट्स के लिंक दे रखे हैं, इस पर डाटा अवेलेबल है. तो इन डॉक्यूमेंट्स हेडक्वार्टर ने आपको स्टेशन लेवल पे दे रखे हैं ताकि आप इनके अकॉर्डिंग स्टेशन में कंप्लायंस कर सकें, ताकि ऑडिट्स फाइंडिंग्स कम से कम आए, क्योंकि जो भी ऑडिट्स या फाइंडिंग्स आएंगी वो इसके अदर देन नहीं आएगी. जो भी आएगी आप इन्हीं मैनुअल्स या सर्कुलर्स या इनके आप कंप्लायंस कर रहे हैं तब नहीं आएगा, और नॉन कंप्लायंस है तो ये ऑडिट्स के ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं. नाउ द मेन पॉइंट इज, ये तो आपको एक ब्रीफ था उसका एक ओवरव्यू. नाउ द मेन इज व्हाट आर द पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स जो स्टेशन लेवल पर जनरली होता है और ड्यूरिंग ऑडिट्स, लाइक एविएशन सेफ्टी आल्सो, DGCA also. So luckily I have associated with this audits related things. So मैंने 5-6 ऑडिट्स किए हैं यहाँ पे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट कंसोलिडेट पॉइंट्स बनाए हैं जो एविएशन सेफ्टी और DGCA एक जनरली कॉमनली उनको ऑब्जर्व करता है. तो उसके लिए बारे में मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ. फर्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट DGCA कार, इकाओ, एनेक्चर्स, डॉक्स एट स्टेशन. ये एक मेजर पॉइंट होता है. जनरली ये एवरी स्टेशन पे ये जनरली नहीं होता कई बार, या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में होता है, इसकी हार्ड कॉपी नहीं होती. सो इट शुड बी अवेलेबल इन हार्ड कॉपी विद सीएनएस इंचार्ज, एंड सॉफ्ट कॉपी शुड बी अवेलेबल एट ऑल कंसर्न्ड UICs PCs, रिस्पेक्टिव साइट्स PCs और DTOs PCs इफ रिक्वायर्ड. सो ये पॉइंट जो है वो सारी यूनिट्स के लिए कॉमन है. देन सेकंड इज टेस्ट इक्विपमेंट. टेस्ट इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टेस्ट इक्विपमेंट्स, कि आपको करेक्टिव या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए टेस्ट इक्विपमेंट्स ही आपके पास अवेलेबल नहीं है. सेकंड थिंग, टेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो पीरियोडिकली अपडेटेड नहीं है या कैलिब्रेटेड नहीं है. थर्ड थिंग, टेस्ट इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, मींस कैलिब्रेशन आपके पास किया है लेकिन आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, या टेस्ट इक्विपमेंट्स पे डेट ऑफ कैलिब्रेशन और ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट कैलिब्रेशन मेंशन नहीं है. तो ये भी जनरली एक ऑडिट्स वाले ऑब्जर्व करते हैं. तो जनरली जनरल टेस्ट इक्विपमेंट शुड बी प्रोक्योर्ड बाय द स्टेशन, लाइक मल्टीमीटर एंड अर्थ टेस्टर, एंड स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट लाइक CRO और फ्रीक्वेंसी काउंटर और नेव एनालाइजर और वेक्टर नेव एनालाइजर, peak power meter, because these are the costly equipment. So these should be purchased in a consolidated requirement
and projected to CHQ RHQ, then requirement should be done through RHQ or CHQ. Now this maintenance schedules of the logbooks में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये कॉमन टू ऑल यूनिट्स हैं. First is latest and updated maintenance rules as per CNS manual not available oblique printed. जो अपने पास जो CNS manuals हैं जो 9 वॉल्यूम्स में अवेलेबल हैं, उसमें से कुछ जो हैं CNS के लिए हैं, कुछ ऑटोमेशन के लिए हैं, कुछ रडार के लिए हैं, कुछ रैवेट्स के लिए हैं. वो मैनुअल्स टाइम अपडेट होते रहते हैं. तो अपडेटेड मेंटेनेंस रूल्स आपको प्रिंट करना है. किसी किसी स्टेशंस पे वो अपडेटेड मैनुअल सारे नहीं होते हैं. सपोज किसी का डेली वीकली मंथली है लेकिन क्वार्टरली अवेलेबल नहीं है, जबकि क्वार्टरली अप्रूव्ड प्लान में है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है. सेकंड थिंग, maintenance rules, logbooks, other records, pages are not numbered and initial certification not done. कोई मेंटेनेंस रूल्स आप खोलते हैं, लॉगबुक खोलते हैं, वो इनिशियल सर्टिफिकेशन नहीं है उसका, या लॉगबुक्स में पेजेस मेंशन नहीं, पेज नंबर मेंशन नहीं है, तो ये एक पॉइंट होता है. अब रिकॉर्ड्स आर लूजली बाउंड, मींस कई बार ये रिकॉर्ड्स होते हैं वो लूजली मतलब जैसे अपने ऐसे फाइलिंग कर दिया नॉर्मल और लूजली है या धागे से बांध के मैनेज कर रहे हैं, वो डिजायरेबल नहीं है. इट शुड बी प्रॉपर्ली बाइंडेड. स्विफ्ट एंड जनरल ड्यूटी लॉगबुक अवेलेबल नहीं है. जनरल ड्यूटी लॉगबुक पहले कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है, तो ये भी एक जनरल ड्यूटी लॉगबुक होना चाहिए. स्विफ्ट ड्यूटी एंड जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स साइंड इज मिसिंग ऑन द रिस्पेक्टिव मेंटेनेंस शेड्यूल्स. एवन सीनियर इंचार्ज साइन मिसिंग बेयरेबल एप्लीकेबल. सो जब भी कोई ऑडिट होता है तो वेल इन एडवांस आप सारे जितने भी मेंटेनेंस शेड्यूल्स हैं, लॉग बुक्स हैं, सबको प्रॉपर्ली चेक करो कि साइन कहीं मिसिंग तो नहीं है. तो ये एक पॉइंट होता है जनरली कॉमन. फॉल्ट अकर हैज नॉट बीन मेंशन द लॉग बुक्स. कोई फॉल्ट अकर हुआ है आपके तो वो लॉग बुक में मेंशन नहीं है, और जब हुआ है तो वो टाइमली स्टैम्प नहीं है. हेडिंग ऑफ द मेंटेनेंस शेड्यूल्स, लॉग बुक्स, रिकॉर्ड्स नॉट प्रिंटेड और रिटन द प्रॉपर फॉर्मेट. जो रजिस्टर्स के होता है ऊपर कि ये रजिस्टर किसके लिए बिलोंग करता है, उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें एक लोगो है, फ्रॉम टू और फ्रॉम कब खुला कब तक वैलिड है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में शुड बी प्रिंटेड. मेंटेनेंस शेड्यूल्स एंड लॉगबुक इज नॉट प्रॉपर्ली फिल्ड और साइंड. जनरली क्या होता है कि मेंटेनेंस शेड्यूल में जहाँ पे डेजिग्नेशन है, डेट्स है, वो डेट्स नहीं लोग मेंशन करते हैं, तो ये एक पॉइंट हो जाता है, छोटा सा पॉइंट. मेंटेनेंस शेड्यूल इज इनकम्प्लीट एंड समटाइम्स डेट आर बाईपास्ड. Maintenance schedule is incomplete or maintenance not done in some particular dates. There are many correction in logbook without initials and whiten also used. So logbook में आप जब भी कोई एंट्री करते हैं तो प्रॉपरली इसको प्रिकॉशन से भरें और कम से कम काटापीटी करें, वाइटर्स का यूज कम से कम और करें. अगर रिक्वायरमेंट है तो इनिशियल्स साथ में करें ताकि उसमें करेक्शंस कम से कम हो. इन मेंटेनेंस शेड्यूल्स मेंटेनेंस नॉट कैरिड आउट डेली, डेट्स आर बाईपास. ये भी कभी ऑब्जर्व किया है कि जब कई बार मेंटेनेंस शेड्यूल देखते हैं वो पास्ट रिकॉर्ड्स में, तो पता लगे आज एक के बाद डायरेक्टली 15 को उन्होंने आज 1 मई को किया, उसके बाद 15 मई को किया, बीच की डेट वो लोग गायब कर दिया. तो ये भी एक अवॉइड करना है कि इस तरह की चीजें ना हो. रीडिंग इन मेंटेनेंस शेड्यूल्स हैव बीन कॉपी पेस्टेड और नॉट टेकन ऑन एक्चुअल बेसिस. समटाइम्स क्या करते हैं ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, वो रीडिंग्स को जो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं उसको नहीं लिखते हैं, तो ये भी एक ऑब्जर्व करते हैं कई बार. Parameter in maintenance schedules are showing out of limits in which no communication and action being carried out by the station for abnormalities if it is actually issued. कई बार क्या होता है कि कुछ इक्विपमेंट में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन स्टेशन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हैं पता है, लेकिन उसको हेडक्वार्टर को, आरएसक्यू को या सीएचक्यू को प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, और एबनॉर्मल केस है फिर भी वो विदाउट एनी अप्रूवल उसको चला रहे हैं, तो ये भी एक इसको भी अवॉइड करना है. ओल्ड मेंटेनेंस शेड्यूल्स, लॉग बुक्स, रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल और इन वेरी बैड कंडीशन, शुड बी प्रिजर्व्ड एज पर सीनियर सर्कुलर दिस. तो जिसके लिए सीनियर प्रिजर्वेंस एक पॉलिसी है, उसको अकॉर्डिंग आपको प्रिजर्व करना है. फॉल्ट लॉग बुक एंड हिस्ट्री लॉग बुक नॉट अवेलेबल, ये भी एक पॉइंट बनता है.
faults are not mentioned in the fault logbook and fault logbook is not made as per the standard format. उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपको डेट, फॉल्ट अकर्ड, फॉर एक्शन टेकन, फिर टाइम ऑफ रिकवरी और रेक्टिफिकेशन, फिर सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल यूआईसी इंचार्ज, दैट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट. हिस्ट्री बुक नॉट अपडेटेड, ये जनरली हिस्ट्री बुक जनरली बहुत रेयर केस में हम लोग अपडेट करना पड़ता है. जैसे सपोज आपका कोई फैसिलिटी ट्रांसफर हो रहा है लाइक डीवीओआर या एचपीडीएमई, तो वो इट शुड बी रिकॉर्डेड आल्सो, उसको भी मेंशन करना है. प्री मानसून चेक्स फॉर सीरियस फैसिलिटी हैव नॉट बीन कैरिड आउट टाइमली और रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल. प्री मानसून चेक होता है वो एवरी 6 मंथली होता है, उसको टाइमली लोग नहीं करते हैं, वो भी एक पॉइंट ऑफ बनता है, या फिर लोग करते ही नहीं है तो वो भी एक इशू है, और उसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है तो भी कई बार स्टेशन पे इश्यूज बनते हैं. CNS equipment in operation have completed lifespan or extension of the life approval not taken from CNS Online Directorate. कोई भी इक्विपमेंट जो अपने लाइफ स्पेन कंप्लीट कर चुका है और आप उसको चला रहे हैं इन ऑपरेशन में, तो उसका आपको अप्रूवल हेडक्वार्टर से वेल इन एडवांस में लेना है, नहीं तो ये एक इलीगल है कि आप बिना अप्रूवल के आप उसको ऑपरेशन में दे रहे हैं. NOTAM register not available or updated timely, this is one point also. MTVF register not available and updated timely. CNS ATS automation equipment manuals are equipment जो है उनके manuals not available because it should be available at site or respective nearby respective equipment, so that troubleshooting can be done easily or within time. Earthing maintenance not carried out timely or maintenance schedules not made or not been carried out as per CNS manual. सब स्टेशन में क्या ऑब्जर्व किया है कि अर्थिंग्स हैं लेकिन अर्थिंग मेंटेनेंस उसके लिए शेड्यूल ही नहीं बना हुआ है, या उसको बना हुआ है तो उसको लोग प्रॉपर्ली टाइमली नहीं कर रहे हैं. तो ये और जो भी करना है उसको सीएनएस मैनुअल के अकॉर्डिंग करना है. इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी है, कई स्टेशन पे ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग अर्थिंग जो कर रखा है वो जीआई प्लेट से कर रखा है, जबकि जीआई प्लेट हमारे सीएनएस में एप्लीकेबल नहीं है, ये ओनली इलेक्ट्रिकल में लोग करते हैं. हमको जितनी भी अर्थिंग है सारी हर जगह कॉपर प्लेट यूज करना है. Technical person not properly equipped, authorized and trained to perform duty. Sometimes proficient means जो भी इक्विपमेंट बंदा वो काम कर रहा है, या तो वो ट्रेंड नहीं है या ऑथराइज्ड नहीं है. लाइक जनरली क्वेरीज आती हैं कि जो सीनियर असिस्टेंट लेवल पे जो होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पे बंदा ऑथराइज्ड है कि नहीं है, तो ये क्वेरीज है, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक पता नहीं है कि फाइनली क्या करना है इसका. ये स्टेशन टू स्टेशन लेवल पे लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं. बैटरी बैकअप रीडिंग्स रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, कि आप जो बैटरी बैकअप की रीडिंग ले रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, बस आप लॉगबुक में लिख दे रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है. CNS ऑटोमेशन फैसिलिटीज, परचेज ऑर्डर, कमीशनिंग ऑर्डर और अदर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल. जब इनिशियल स्टेज पे ऑडिट्स होता है तो आपसे कोई भी आपका परचेज ऑर्डर, पीओ कॉपी, कमीशनिंग ऑर्डर, FIU कॉपी, कमीशनिंग फैसिलिटी, मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं जो वेरी much important records हैं, वो should be preserved and keep in a particular file. AC maintenance records not available, क्योंकि जो हमारा जो AC होते हैं इक्विपमेंट साइट्स में, उसका वीकली या मंथली बेसिस पे हमारा मेंटेनेंस होता है, तो इसका रिकॉर्ड जनरली इलेक्ट्रिकल सेक्शन रखता है. बट इट शुड बी जब भी हम लोग जब भी मेंटेनेंस करते हैं तो सीएनएस वाला बंदा उसको साइन करता है, तो उसको प्रॉपर्ली देखना है, उसको वो टाइमली हो रहा है नहीं हो रहा, और उसका रिकॉर्ड भी अगर चाहें तो हम लोग सीएनएस में रख सकते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर डिटेल्स नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं अपने सीएनएस सेक्शन में या नेवेट साइट्स में, उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है. RF रूट डायग्राम्स, पावर सप्लाई रूट डायग्राम, पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, RF डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम नॉट अवेलेबल. सो ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. जब आप प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट में मैं बताया था आपको इनिशियल फेज पे, उस प्री कमीशन चेकलिस्ट में ये सारे पॉइंट्स में कवर आता है. अगर आपके पास ये डायग्राम्स नहीं है तो प्री कमीशन चेकलिस्ट में आपके पॉइंट्स सारे कंप्लाई नहीं होंगे. इसलिए ये प्रॉपरली बनाना है. समटाइम्स कुछ लोग लाइन डायग्राम बना देते हैं, कुछ लोग पैसे बनाते हैं, जैसे भी ये लोग बना के रखना है, एटलीस्ट थोड़ा यूजफुल रहे. सीएनएस और ऑटोमेशन जो फैसिलिटीज हैं उनका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग डेट स्टेशन पे रिकॉर्डेड नहीं है, पूछते हैं तो उनको
प्रॉपरली एक शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपरली या डिस्प्ले होना चाहिए। रूम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर नॉट मेंटेन्ड एज पर सीनस मैनुअल, या सेंसर भी अवेलेबल नहीं है। आप टेम्परेचर आप देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, आपको सेंसर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप वहां से कहाँ से मेजर करेंगे उसको। अब केबलिंग जो है वो नॉट प्रॉपर है या नॉट थ्रू कंड्यूट, या एक्स्ट्रा अनयूज्ड केबल पड़ा हुआ है, उनको आपको रिमूव करना है। क्लीनिंग एट वर्क प्लेस ऑब्लिक इक्विपमेंट एरिया इज नॉट डन। क्लीनिंग शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। समटाइम्स आपके जाले आ रखे हैं या गंदगी पड़ी है, तो ड्यूरिंग ऑडिट्स ये पॉइंट्स आपको अवॉइड करना है। वाटर सीपेज लीकेज इज ऑब्जर्व्ड इन द वॉल बिल्डिंग नियर इक्विपमेंट रैक। तो वाटर सीपेज है, बिल्डिंग्स में लीकेज है, ऑब्जर्व है ये वॉल में, तो ये प्रॉपरली वेल इन एडवांस में आपको सिविल से मेल मेल करके प्रॉपरली इसको टाइमली एक्शन लेना है इसके लिए। पेंटिंग आल्सो एक वन पॉइंट, नावेट से पर्टिकुलर नावेट साइट्स के लिए जो पेंटिंग है वो प्रॉपरली होना चाहिए और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे रेड और व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन। लाइटिंग अरेस्टर्स नॉट अवेलेबल ऑन द बिल्डिंग। समटाइम्स ये भी ऑब्जर्व किया है कि हट जो नावेट साइट्स हैं या एटीसी बिल्डिंग पर लाइटिंग अरेस्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट बनता है। अर्थिंग पिट्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। अर्थ रेजिस्टेंस आर आउट ऑफ लिमिट। अर्थ पिट आर नॉट मार्क्ड फॉर विच इट इज यूज्ड। आपको जो अर्थिंग पिट है वो इट शुड बी मार्क्ड फॉर विच, मतलब जिस फैसिलिटी के लिए वो अर्थिंग यूज हो रहा है वो आपको उसके ऊपर लिखना है। जनरली इलेक्ट्रिकल सेक्शन क्या करता है कि उसमें अर्थिंग रजिस्टर भी मेंशन कर देता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। आपके पास यदि अर्थिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है तो यू कैन मेंशन ऑन दैट वन, सो यू कैन शो दैट डाटा टू ऑडिट पर्सन, ही विल बी एग्री। अर्थिंग है वो रिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है अभी रिसेंटली जो है, इट शुड बी अर्थिंग इन रिंग कॉन्फ़िगरेशन और जंक्शन पॉइंट शुड बी अवेलेबल। अर्थिंग रूट इज नॉट प्रॉपर, में अर्थिंग जो है वो शुड बी प्रॉपर रूट। ऐसे नहीं कि आपकी अर्थिंग ओपनली लूजली पड़ी हुई है, इट शुड बी प्रॉपर रूट, प्रॉपर डक्टिंग हो, जितना डक्टिंग हो उतना करना चाहिए। यूपीएस रूट डायग्राम नॉट अवेलेबल। आपकी जो क्लास बी और क्लास सी एसपीडी है यूपीएस के इनपुट और आउटपुट पे वो अवेलेबल नहीं है एज पर सीएनएस मैनुअल, वो भी आपको करना है। डब्ल्यूपीसी लाइसेंस फॉर फ्रिक्वेंसी नॉट अवेलेबल। जो आपके पास अवेलेबल फ्रिक्वेंसी है उसकी लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको टाइमली एक्शन लेना है उसके लिए। मास्ट लाइट नॉट अवेलेबल एट सम प्लेसेस और इन ब्लॉकेड कंडीशंस। कई बार ये थंडरस्टॉर्म्स आते हैं या फिर तूफान आते हैं, उसकी वजह से मास्ट लाइट कई बार डैमेज हो जाती है, तो उनको आपको टाइमली एक्शन लेकर रिपेयर करवाना है। यूपीएस डज नॉट हैव एनी लॉगिंग फैसिलिटीज। पहले यूपीएस जो आते थे उसमें लॉगिंग फैसिलिटीज जनरली नहीं होती थी, तो आपको यूपीएस जो परचेज करना है उसमें लॉगिंग फैसिलिटी होना चाहिए। बैटरी रिप्लेसमेंट प्लान नॉट मेंशन ऑन द बैटरी रैक। बैटरी रैक में जो है आपका बैटरी रिप्लेसमेंट प्लान मेंशन, मतलब आपका ड्यू डेट ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट इट शुड बी मेंशन्ड ऑन दैट द बैटरी रैक। Junction box point not available for earthing, available at NAVET sites. Electrical supply route oblique distribution diagram not available. AC maintenance not proper and sufficient ACs are not available. Suppose आपको जितनी एसी की रिक्वायरमेंट है उतने वहाँ पे एसी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको एक टाइमली एक्शन लेके इलेक्ट्रिकल से कोऑर्डिनेट करना है। एक्सेस कंट्रोल नॉट अवेलेबल एट ANS sites. So nowadays ANS sites should have CCTV and access control provision. तो ये आपको दोनों चीजें अवेलेबल होना चाहिए। फैट सेट हैंडिंग ओवर रिपोर्ट नॉट अवेलेबल। जब भी आप पर्टिकुलर एवेट साइट्स के लिए आपके पास हैंडिंग ओवर सेट फैट या कोई भी आप रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। स्टैटिक मैट्स आर नॉट अवेलेबल इन द इक्विपमेंट साइट। एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप नॉट यूज्ड व्हाइल वर्किंग ऑन द इक्विपमेंट। समटाइम्स डीजीसी वाला आपको बोलता है कि आप चेंज ओवर करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर है वो उसको प्रिकॉशनली आपको एंटी स्टैटिक रेस्ट रैप ये पहन के ही करना है ताकि वो एक पॉइंट ना बने, सो उससे स्टेशन की वो अच्छा है, वो अप्लाई करना है। सम पॉइंट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन जॉब चेक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोफिशिएंट एग्जीक्यूटिव नॉट अवेलेबल। So nowadays, this on-job check, that is a requirement of the DGCA. It should be done on every year regular basis, and generally it is initiated by the RTC, WR or respective RTC. So
ऑन जॉब चेक इट शुड बी कैरिड आउट, इसका रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। बायोडाटा फाइल जो भी एग्जीक्यूटिव्स है जिसके पास जो रेटिंग्स हैं उसके लिए एक बायोडाटा फाइल है, इंडिविजुअल बायोडाटा फाइल वो बनाना है, उसमें सारे रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स आपको भरना है और टाइम टू टाइम अपडेट भी करना है, वो भी होना चाहिए। अवेलेबल सैंक्शन स्ट्रेंथ डाटा नॉट अवेलेबल, job and responsibility data of executive or non-executive not available, station CNS manual not updated, last FIU reports not available, proficient staff on particular facility not available, OJTI records not available, या some stations don't have the OJTI। तो ये जनरली OJTI वाला पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, तो इसके लिए आप एक हेडक्वार्टर का एक लेटर है OJTI वाला, जिसमें मेंशन्ड है कि आपके पास ये स्टेशंस OJTI के लिए नॉमिनेटेड है या ऑथराइज्ड है, तो उसका रेफरेंस देके आप इस पॉइंट को ड्रॉप करा सकते हैं, क्योंकि जब आपका स्टेशन और एंटाइटल्ड ही नहीं है OJTI के लिए तो ये पॉइंट फिर इसका वॉइड हो जाता है, तो इसका रेफरेंस देके आप इस पॉइंट को ड्रॉप करा सकते हैं। SOP फॉर वॉच ओवर ओपन एंड क्लोज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय रीजनल GM। इसमें सर्कुलर है वो मेंशन, उसमें मेंशन्ड है कि दिस SOP शुड बी अप्रूव्ड बाय रीजनल GM। SOP for alternate means of frequency is not available. It should be available and it should be signed by CNS in charge and ATC in charge altogether. SOPs for switching on off of the respective equipment not available or displayed. Intranet unserviceable registers not available, updated. Flight calibration register not available. UPS warranty or CMC records not available. Intercom, HTTP lines, VoIP or any other lines related complaint registers not available. So इस समय complaint registers regarding में ये भी एक point बनता है। Miscellaneous records में weekly power supply changeover records not available। ये जो NAVET sites पर जो power supply changeover करते हैं, ये feed line change करते हैं, तो उसके लिए वो records available होना चाहिए और it should be displayed on the particular LT panel or particular sites। फायर अलार्म चेक रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, कि आपका जो फायर अलार्म चेक होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, सो ये भी एक रिस्पेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर पे डिस्प्लेड होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी हैंग्ड ऑन वॉल और प्लेस इन स्टैंड। फायर एक्सटिंग्विशर को आपको स्टैंड पे टंगाना है या फिर उसको एक स्टैंड पे रखना है, वॉल पे टंगाना है। एंड फायर सप्रेशन सिस्टम शुड नॉट अवेलेबल एज पर एस लॉ। अभी जो लेटेस्ट जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे नया ATC हो चाहे नया NAVET साइट्स हो, उसमें फायर सप्रेशन सिस्टम एज लॉ के अकॉर्डिंग मेंशन्ड है, सो वो प्रोविजन हमको करके रखना है। एग्जीक्यूटिव आर नॉट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू हैंडल फायर रिलेटेड इक्विपमेंट, सो एग्जीक्यूटिव शुड बी ट्रेन्ड ऑन द फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। फायर पॉइंट स्टिकर्स आर नॉट पेस्टेड एट प्लेस वेयर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल, तो जहां फायर एक्सटिंग्विशर का इक्विपमेंट अवेलेबल है वहां फायर पॉइंट स्टिकर्स पेस्ट होना चाहिए। फायर सीक्वेंस डायग्राम एट NAVET साइट्स नॉट अवेलेबल, सपोज आपके कोई साइट पे फायर हुआ तो कैसे किस किस मीडियम के थ्रू आपके पास कम्युनिकेशन होगा। सपोज सबसे पहले आपके इक्विपमेंट के पास इंटरकॉम कॉल आएगा, फिर फायर में जाएगा, तो वो फ्रीक्वेंस डायग्राम शुड बी अवेलेबल। प्रोफिशिएंसी रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल इन फायर वॉच टावर पब्लिक फायर कंट्रोल रूम, हॉटलाइंस टू बी प्रोविजन विद सिटी फायर। ये अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कि फायर कंट्रोल रूम में या फायर वॉच टावर में इट शुड हैव द hotlines with the city fire also. Organizational structure and scene structure not available. SMU contact and list not available. Non-executive job responsibility and accountability not defined in CNS manual. Accountability of the technical staff not mentioned in CNS manual. Stations specific SOPs are not available. Familiarization of the refresher training records for new posting or transfer employee on CNS facility not available. सपोज जैसे स्टेशन पे OJTI अवेलेबल है, उनको ये रिकॉर्ड्स रखना है, प्रिजर्व करना है पर्टिकुलरली उनके लिए। DVR जो होता है फॉर नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग चैनल्स नॉट मेंटेन प्रॉपरली, रिकॉर्डिंग इज नॉट प्रॉपर, रिकॉर्डिंग डाटा आल्सो नॉट अवेलेबल और रिकॉर्डिंग इज नॉइजी। सो ये एक पॉइंट है, ये एक बीच DVR रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एवरी ऑडिट का एक कॉमन पॉइंट है। OFC route diagram, RF link diagram should be available and OFC should be in ring topology. Only one remote connectivity medium available, means we should have the redundant media also, either OFC or RF link.
Auto changeover of the supply at remote sites not available. So रिमोट साइट्स पे जो सप्लाई आती है, फीडर लाइंस आती है, वहाँ पे ऑटो चेंजेबल स्विच या डिवाइस होना चाहिए. In NAVET sites, supply is not available in ring configuration. Digi supply not available at sites. Word spikes not available on antenna. Operational vehicle, fire watch tower, fire control room, walkie-talkie base station, walkie-talkie handset not available. So generally ये कॉमन पॉइंट है कि फायर की जितने भी सेटअप्स हैं वहाँ पर बेस स्टेशन या वॉकी-टॉकी हैंडसेट अवेलेबल कई बार नहीं होता है तो वो खराब कंडीशन में है, तो दैट शुड बी वी शुड टेक एक्शन. फायर वॉच टावर में, फायर कंट्रोल रूम में डिजिटल क्लॉक अवेलेबल नहीं है. फायर कंट्रोल रूम में VHF मॉनिटरिंग अवेलेबल नहीं है, ये भी एक कॉमन पॉइंट है. वॉकी-टॉकी लाइसेंस फॉर, सपोज आपके पास 50 वॉकी-टॉकी है लेकिन आपके पास लाइसेंस 20 का ही है, तो ये भी एक अवॉइड करना है सिचुएशन को. तो आपको जितने भी लाइसेंस यूज करने हैं, जितने भी आपके पास वॉकी-टॉकी है सबका लाइसेंस होना चाहिए. आप लाइसेंस फ्री वॉकी-टॉकी परचेज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक सिचुएशन फ्लड और लोकल कम्युनिकेशन, उसके लिए आप लाइसेंस फ्री वॉकी-टॉकी परचेज कर सकते हैं. वो एक टेम्परेरी मीडिया हो सकता है फॉर कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ drastic situations. ILS hut antenna is not fungible. Toilet is provision within runway strip, CNS installation. So recently बड़ौदा में भी ये वाला केस हुआ था कि जो जीपी जो हमारा जो नया जीपी हट लगा था, एसलो में मेंशन था कि आपको टॉयलेट बनाना है विद इन रनवे स्ट्रिप में, लेकिन डीजीसी को जब हमने स्कार्स भेजा तो उन्होंने टॉयलेट के लिए मना कर दिया कि विद इन रनवे स्ट्रिप में टॉयलेट शुड नॉट बी प्रोविजन. हमारे कार में मेंशन है टॉयलेट वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, तो हमने फिर टॉयलेट को रिमूव किया. सो कभी फ्यूचर में जिस स्टेशन पे भी ये इंस्टॉलेशन है तो बेटर है कि जीपी साइट पे या रनवे स्ट्रिप में जो भी स्ट्रक्चर है वहां पे आपको टॉयलेट को अवॉइड करना है. आइसोलेशन वे नॉट अवेलेबल, नॉट मेंटेन्ड. आइसोलेशन वे CCTV फैसिलिटी नॉट अवेलेबल. रिमोट एक्सेस ऑफ CCTV एट ACCR रूम नॉट अवेलेबल. थर्मल आइसोलेशन इज नॉट अवेलेबल if hut is fungible. In NAVET sites, critical sensitive area not maintained. Critical sensitive area labeling not proper. Water logging in critical sensitive area. Signage boards are not available or maintained properly. अभी लास्ट जो हमारे यहाँ बड़ौदा में ऑडिट हुआ था एविएशन सेफ्टी, उसमें ये पॉइंट उठा था कि जो क्रिटिकल सेंसिटिव एरिया है अपने NAVET साइट्स के, इट शुड हैव द फेंसिंग. साइनेज बोर्ड तो वो एक अलग चीज हो गया, इसके अलावा फेंसिंग होना चाहिए. फेंसिंग के लिए एक आपके पास फ्रेंजिबल पोल्स हो विथ में रिफ्लेक्टेड टेप लगा के उसको डेजिग्नेट करना है. तो हमने बड़ौदा में ये चीजें किया है और ये अच्छा है वैसे फ्यूचर के लिए. वाटर लॉगिंग एरिया इज ऑब्जर्व्ड इन नियर बाई NAVET इंस्टॉलेशन. अप्रोच पाथ टू NAVET sites not maintained properly. Response time in case of fire at site have longer time to reach. Antenna layout diagram not available for VHF antenna, that is antenna. RCU, RSU facility not available in equipment room, /ATC tower. Remote maintenance monitoring of the parameter not available at equipment room. CNS advisory circulars not followed, like lighting arrestor installation, hot or cold standby provisions. Fill ring points not marked properly or not available up to 35 degree wherever applicable. मॉनिटर एंटीना नॉट अवेलेबल फॉर लोकलाइजर साइड, लाइक भावनगर केस लोकलाइजर में मॉनिटर एंटीना अवेलेबल नहीं है. तो अगर नहीं है तो उसके लिए हमको डीजीसी से या कुछ आपको ऐसा डॉक्यूमेंट रखना, अपने पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखना है ताकि ये पॉइंट ना उठे. रेसा एरिया नॉट अवेलेबल और मेंटेन्ड एज पर पॉलिसी. नियर बाई लोकलाइजर हट ऑब्लिक एंटीना ओपन मैनहोल्स ऑब्लिक डिगिंग इज डन विच इज नॉट कवर्ड. तो ये भी एक पॉइंट जनरली बनता है. ILS का जहाँ इंस्टॉलेशन है वहाँ पे हीट नहीं होना चाहिए कोई भी. इन NAVET इक्विपमेंट रूम फैसिलिटीज इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल और अपडेटेड टाइमली. होल्स जो हैं, इनलेट्स हैं, आउटलेट्स हैं वो NAVET साइट्स के, इट शुड बी प्रॉपर्ली क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलिका जेल और PU फॉर्म व्हिचएवर और वाइट सीमेंट. इट शुड बी प्रॉपर्ली क्लोज्ड. पॉइंट्स बहुत सारे हैं. सिंक्रोनस रिकॉर्डिंग in case of automation not available. CNS workshop not available. Required tools for maintenance is not available. Digital clock is not available or synchronized through NTP server. ये फायर पंप हाउस का भी हमारे बड़ौदा में रिसेंटली उठा था ये पॉइंट
कि फायर पंप हाउस में इंटरकॉम फैसिलिटी रिक्वायर्ड ड्यू वीक सिग्नल ऑफ मोबाइल ऑब्लिक बाकी टॉकी। तो ये हमारे प्रोग्राम में भी ये फायर डिपार्टमेंट ने ये पॉइंट उठाया था, तो हमने कंप्लाई किया। इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी नॉट अवेलेबल, ये भी एक पॉइंट है, ये हमेशा होना चाहिए। रिकॉर्डिंग डाटा इज नॉट प्रिजर्व इन एक्सटर्नल मीडिया। समटाइम्स सम स्टेशंस पे क्या है, रिकॉर्डिंग डाटा जो है वो एक्सटर्नल मीडिया में प्रिजर्व नहीं करते हैं, वो जो सिस्टम की हार्ड डिस्क में प्रिजर्व करते हैं। तो कई बार क्या होता है, इससे सिस्टम करप्ट हुआ तो आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, इसलिए डाटा को एक्सटर्नल मीडिया में प्रिजर्व करना है। फ्लाइट कैलिब्रेशन इज नॉट डन टाइमली, और वो आपका टाइम टाइम लिमिट से बाहर चला गया तो आपको जो सर्कुलर और मैनुअल्स के अकॉर्डिंग आपको बियॉन्ड पीरियोडिसिटी के बाद आपको वो मंथली जो है वो फोर्टनाइटली हो जाएगा, वीक। तो उस तरह से आपको वो फिल्डिंग पॉइंट्स जैसे वो आपको प्रॉपरली करना है एक्शन के लिए। ACCR रूम में ये फैसिलिटीज बेसिकली होना चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में कर लेता हूँ, कोई टाइम निकल रहा है। Hotlines with city fire and police station, intercom, required facility in ACCR room like walkie-talkie base station, BCCS, manpack, STD lines, CCTV view for isolation bay, PC with internet not available. Runway safety team, all HOD and airlines information and miscellaneous charts and information not available. ACCR room logbooks and maintenance schedules not available, maintained or updated. Joint inspection by CNS/ATC have not been carried out at station. UPS supply not available. Top of the battery rack is not covered. Battery UPS are not under warranty CMC. Proper sitting arrangement not available. Toilet not available nearby. Projector not available for presentation. Satellite phone not available wherever required. WLF facility not available wherever required. ये mandatory नहीं है, 2 points. Digital clock should be there and it should display the IST also, UTC also. ये कुछ कंटीजेंसी प्लान्स हैं जो DGCA के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आजकल हम लोग स्टेशन सीनियर मैनुअल बनाते हैं उसमें सारे कंटीजेंसी प्लान्स हमने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, तो होपफुली सारे स्टेशंस को हम कंप्लायंस करते हैं, तो जनरली ये वाला पॉइंट अवॉइड होता है। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेरे ऑडिट्स में ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स के कुछ ऑडिट किया है, उससे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ताकि थोड़ा एक ओवरव्यू लग सके। किसी को कुछ क्वेरी हो या कुछ मतलब लगे कुछ तो थोड़ा सा बोल सकते हैं। कोई क्वेरी सर, किसी को भी, या अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया ये वाला? और या किसी कोई बंदा कोई एडिशनल कोई पॉइंट ऐड करना चाहे या डिस्कस करना चाहे तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने मैक्स एक्सटेंड पे बनाने की कोशिश किया है इसको। नहीं, आपने पूरा एग्जॉस्टिव ही बना दिया, इसके बाद कोई पॉइंट शायद बचता नहीं है। थैंक यू सर। Really, Bharat, you have presented very well. Recently here in Shirdi also we have done DGCA observation and inspection has been carried out. तो Yes, जो sir. तुमने गाइडलाइन दिए थे काफी हेल्प मिला उससे. So Yes, sir. we hardly got any points related to CNS for Yes, them sir. to find. Yes, Uh, yes, yes. Thanks. Thank you, sir. और ये जस्ट एक्चुअली पॉइंट था नहीं टॉपिक में, मैंने डिस्कस करके कि अगर मैं इसमें काफी इन्वॉल्व इन टॉपिक्स ऑडिट्स के पॉइंट्स में काफी इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके खुद नहीं बनाए ताकि थोड़ा सा जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैक्स टू मैक्स अवॉइड किए जा सकें, तो इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट किया है। होपफुली आई हैव एग्जीक्यूटेड वेल। थैंक यू एवरीवन फॉर listening patiently my views. Thank you. Thank you, sir. Thank you. sir. Thank you. Bharat, do you have this exhaustive checklist for these audits? सर एक्चुअली जब भी ऑडिट होता है ना सर, तो एक चेकलिस्ट आती है। एविएशन सेफ्टी का एक अलग चेकलिस्ट है और DGCA का एक अलग चेकलिस्ट है, तो दोनों चेकलिस्ट को हम भर के हम वेल इन एडवांस में हम ऑलरेडी हम देते हैं उनको RHQ को या CHQ को डाटा को। तो वो चेकलिस्ट का तो सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, वो तो आपको सर कहीं भी मिल जाएगा। ओके ओके, वो स्टैंडर्ड नहीं फॉर्मेट होगा। है, उसको फॉर्मेट एज स्टेशन वाइज चेंज नहीं होता, इट हैज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ओनली। ओके,
और ये जो उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, जो चेकलिस्ट है उसमें बहुत सारी चीज इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका लाइफ स्पैन प्रॉपर है कि नहीं है, एसओपीज, रूट डायग्राम्स, अल्टरनेट सप्लाईज, ये बहुत सारे पॉइंट जो है उसमें तो बहुत कम पॉइंट्स थे। जो कई इसमें से जो पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, ऐसे नहीं कि वो हर चीज रिकॉर्डेड होगा, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं ये पॉइंट्स। ये ऐसा नहीं कि हर पॉइंट आपको, ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको वर्बली भी बोल सकते हैं कि इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। हाँ, नहीं, जनरल ऑब्जर्वेशन विल बी देयर। जनरल ऑब्जर्वेशन, और इसमें हो सकता है वो कई बार, अब डिपेंड करता है सर, जो भी ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है या वो किस मूड में बनाता है। कि कई बार वर्बली भी चीजें हो सकती है मैनेज, और कई बार आपको वो डॉक्यूमेंट कर दिया तो आपको करना ही है फिर तो। राइट, राइट। भारत, एक पॉइंट बताया था आपने, वो हमारे यहाँ भी ऑब्जर्वेशन में आया है, दैट ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी नॉट बीइंग चेक्ड फॉर कवरेज। ओके सर, ओके तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं? सर। जैसे हमारे यहाँ बड़ौदा में क्या कर रहे हैं कि सर हम लोग मॉर्निंग में, जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर है, हमारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन है जो एटीसी सीएनएस के द्वारा कंबाइंडली होता है मॉर्निंग में, बिफोर वॉच ओवर। तो जो भी ओके। फैसिलिटीज एटीसी टावर में इंस्टॉल्ड है उसके लिए, तो वहाँ उनको हमने बोल रखा है कि आप जो कोई फ्लाइट जो आ रही है, इनकमिंग फ्लाइट है, उसमें फॉर थोड़ा सा मूवमेंट्स के लिए आप अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी ट्यून करके उससे भी कवरेज चेक कर लीजिए। तो वो लोग करते हैं सर, उसके उसके लिए सर वो आपको हर एटीसी से कोऑर्डिनेट करना है उसके Record लिए। which you are maintaining for submission for DGCA? नो, इसके लिए डीजीसी की सबमिशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। ये तो जस्ट एक पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि किसी स्टेशन पे अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो पॉइंट बनता है। अब अवेलेबल है, उसको मेंटेन कर रहे हैं या कवरेज चेक कर रहे हैं, वो जैसे वर्बली पूछ लेते हैं कि इसको चेक करते हैं कि नहीं करते। करते हैं तो कितना Okay. कवरेज आता है, तो सिर्फ वर्बली पूछ लें। वो एक पॉइंट रिकॉर्डेड पॉइंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। रिकॉर्ड का पॉइंट यही बनेगा कि आपको फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होना चाहिए, या फिर इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। जैसे जब जहां भी एरिया स्टेशन हैं, वहां अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी ना होके एक इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी होती है 1 to 1.5। तो और जहां पे टावर या अप्रोच प्रोसीजर्स हैं, वहां पर अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी शुड बी देयर। Okay, so actually here in Shirdi we got this point that we have main frequency also and an alternate frequency also. So, but they have observed that they are not checking daily for the alternate frequency for its coverage. So सर that उसका सॉल्यूशन सर observation यही point है कि was सर there. देखो, आपका जो We have रजिस्टर आपने बना रखा one होगा, जो solution here कि हमने क्या किया है कि जो डी ब्रीफिंग रिपोर्ट लेते हैं उसमें उनसे एटीसी का कंसर्न से उन्हें बता दिया है कि आप इसको ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी पे भी जो भी कंसर्न फ्लाइट जब आ रही है तो आप यस उस यस समय दोनों से ही कर लीजिए एंड यू इन्फॉर्म पायलट ऑल्सो दैट वाइल लैंडिंग he should submit the debriefing report also of both the यस 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 frequencies. So नहीं, like दैट इज this बेस्ट। we have carried दे आर out प्रोवाइडिंग here. ब्रीफिंग रिपोर्ट, इज द बेस्ट। So that will be the documentary proof also that we are doing it and maintaining it. So here we have started. Yes, Yes. sir. Sir, what we have done at Vadodara, we have the joint inspection register, whichever facility is installed at that. Yes. So Yes. in that you can mention that particular frequency check also. So that डिब्रीफिंग भी that तो ले रहा है ना भारत? क्या सर? डिब्रीफिंग भी तो हम लोग ले ही रहे हैं ना भारत? नहीं, डीब्रीफिंग भी एक वो तो है ही है, लेकिन आप डेली बेसिस पे जो जॉइंट इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, तो वो भी यदि हाँ, वो इसमें भी कर रहे मेंशन्ड है, यदि हैं। ओके हाँ है, तो मतलब मीन्स वो चेक हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंटेड हो गया। हाँ हाँ। तो डीवी फ्रेम रिपोर्ट तो लेना ही है, वो तो एक होना ही है। बाकी एक आप एक लोकल सॉल्यूशन यही है कि जो इंस्पेक्शन रजिस्टर में वो मेंशन कर लीजिए और उसको डेली बेसिस पे चेक करवा लीजिए, और साइन एटीसी वाला भी करेगा, उस पर सीएनएस वाला भी करेगा। तो जब दोनों के साइन होंगे तो इट इज डॉक्यूमेंटेड, तो उसमें कोई क्वेरी नहीं होगा फिर। Thank you. Thank you, Bharat. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।